This is one of the chapter in your book, if you have gone through social entrepreneurship. And this topic is very close to my heart. Why it is close to my heart? Because I have done my PhD in social entrepreneurship. So, what I am going to share with you, some of the insights are from my research work, and we'll try to understand that how innovation can be applied to solve the social problems, and why these social problems are required to be solved. सोशल प्रॉब्लम्स सॉल्व करना क्यों जरूरी है, और ये सोशल प्रॉब्लम बेसिकली व्हाट आर दीज सोशल प्रॉब्लम्स आर. इफ आई आस्क यू, कैन यू नेम मी सम ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स व्हाट यू फील दैट? Unemployment, one. Poverty, sorry, competition. What kind of competition? That's a good ना. Healthy competition is always good. अगर competition नहीं होगा तो आज जो better चीजें हम देख रहे हैं ना, यूज कर रहे हैं, ये नहीं होंगी. Competition is very, yes please. Yeah, malnutrition is one of the inequality, some lower living standard, we can say that. Illiteracy. So if we start counting, हम लोग थक जाएंगे, because we live in a country where population is so huge, and the resources and the solution, or the product and services required to serve such a huge population is not up to the mark. Although India's medical or health system is growing with rapid speed, but still, considering the huge population, considering the such a vast population, and the inequality, whatever we can call it, still we need to do so many things. There are number of problems which require to be solved. And if you remember, when in the initial classes we were talking about, and one of the slide was talking about opportunities in the area of social problem. Social problems are, if you can recall that, I have shared, social problems are called sin problems. सोशल प्रॉब्लम की एक खासियत होती है, एक प्रॉब्लम है वो अपने साथ गुच्छों में प्रॉब्लम लेके आती है. पॉवर्टी फॉर एग्जांपल, पॉवर्टी इज वन प्रॉब्लम, राइट? एंड जस्ट इमेजिन and just try to understand, many other problems are because of poverty. People are poor. As a result, they don't have access to the better education, medical, so many things, right? I'm just trying to give you the connection between these problems. People are poor, that's why they don't have access to better education. People don't have access to better education, that's why they are poor. ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बूस्ट करते हैं. Vicious circle. So somebody need to break that. Somebody need to come up with a solution to break that sequence, that chain between these problems. This is the reason these social problems are considered as sin problems. SIN. किसी को याद है हमने SIN डिस्कस करा था? SIN. S stands for sin. S stands for spillover. S stands for spillover. जब कभी भी कोई एक सोशल प्रॉब्लम होती है तो उसके बहुत सारे स्पिल ओवर इंपैक्ट्स होते हैं. हमने कहा ना कि पॉवर्टी, एक सपोज भगवान न करे ऐसे किसी के साथ हो, अच्छा वाला इनकम चल रहा है, लाख रुपए महीना आप कमा रहे हो, सडनली नेक्स्ट मंथ से आपको आपका बॉस बोल दे कि थैंक यू वेरी मच, स्टे एट होम. एक जॉब लॉस कितनी सारी प्रॉब्लम्स लेके आएगा, कितनी सारी प्रॉब्लम्स लेके आएगा. क्योंकि आज की जो आज की हमारी जो पॉपुलेशन है, या यस प्लीज,
बात करते हैं, आते हैं उस पर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दी सोशल प्रॉब्लम्स वर्क, कैसे इनइक्वालिटी कैसे होता है, यही बस डेलिब्रेट करेंगे, कुछ ना कुछ निकालेंगे। बाकी चीजों का भी उतना ही आसान हो जाएगा, हम लोग डिस्कस, आप मुझे समझाना, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विद, तब आते हैं इस चीज पे भी। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द स्पिल ओवर इम्पैक्ट्स। जब कोई एक सोशल प्रॉब्लम होती है तो वो अपने साथ गुच्छों में प्रॉब्लम लेके आती है। You remember I discussed one story in the beginning of that lecture. Sorry, ड्रग एडिक्ट भी आऊंगा, ये तो सारे इसी में है। यस यस यस, वो अभी यहाँ पे इसके इसके लिए ना मेरे पास बेस्ट फिट एक और एग्जांपल है, आपके साथ मैंने शेयर भी किया था, रिक्शा पुलर स्टोरी, इफ यू रिमेम्बर। एक आदमी जो अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए रिक्शा चला के लाइवलीहुड अर्न करता है, सडनली ड्यू टू कैटरेक्ट उसकी आईसाइट चली जाती है। ही लॉस हिज आईसाइट जस्ट बिकॉज ऑफ कैटरेक्ट। दिस इज स्टोरी ऑफ 80s, ठीक है। तो ये हम तब की, मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूं। इमेजिन करो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन आ गई आपके सामने, है ना। तो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन में हम क्या देख रहे हैं, एक रिक्शा पुलर है जो अपनी फैमिली के लिए ब्रेड अर्न करता है। उसकी 2 बेटियां हैं जो स्कूल जाती हैं, एक उसकी वाइफ है जो हाउस होल्ड आसपास में काम करके अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को रेस करने में हेल्प करती है। इमेजिन होना शुरू हो गया। अब जस्ट बिकॉज ऑफ मेडिकल इशू हो गया, कैटरेक्ट हो गया, और वो इंसान अपनी आईसाइट खो गया। अब उसको दिखाई नहीं देता है। काम क्या है उसका, रिक्शा चलाने का। आंखों से ढंग से दिखेगा नहीं तो क्या वो इंसान रिक्शा चलाने जाएगा? नहीं जाएगा। तो वन प्रॉब्लम हैपेंड, दैट वाज कैटरेक्ट। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कैटरेक्ट प्रॉब्लम ही लॉस्ट हिज एम्प्लॉयमेंट। जो वो काम करता था वो उसका चला गया। अब एक चीज समझिएगा, यहां पे समझने वाली बात क्या है, कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि था नहीं, ट्रीटमेंट वाज देयर, बट द ट्रीटमेंट वाज कॉस्टली beyond the reach of that particular individual or people those who belong to that economic group. कैटरेक्ट की सर्जरी तब भी होती थी, ट्रीटमेंट तब भी होता था, लेकिन ट्रीटमेंट कैसा था, एक्सपेंसिव था। और एक्सपेंसिव होने की वजह से क्या कहानी है, पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैट, एंड इफ वन कैन नॉट अफोर्ड दैट, सी खाना तो है बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बहुत महंगा महंगा बिक रहा है, मुझे भूख लग रही है, जेब में पैसा नहीं है, तो मेरे लिए क्या है वो इनएसेसिबल, मेरे लिए नहीं है ना वो। तो सेम थिंग हैपन टू दैट इंडिविजुअल आल्सो। ट्रीटमेंट होने के बाद भी ही कैन नॉट गेट ट्रीटेड, एंड एज अ रिजल्ट ही लॉस्ट हिज एम्प्लॉयमेंट, he lost his eyesight, he lost his employment. What is the repercussions of losing that employment? वो जो जॉब, वो रिक्शा चलाने की जॉब करता था, उसकी वजह से क्या क्या चीजें हुई होगी। वाइफ की जॉब जो है क्या हुई होगी, उसकी जॉब में बर्डन पड़ गया होगा, क्योंकि अब फैमिली रेज करनी है ना। सपोज वो सुबह शाम 2 घंटे काम करती होगी, तो उसको फुल टाइम काम करना पड़ेगा। सेकेंडली, बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, बेशक चाहे वो म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में जा रहे हैं, उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां भी अगर अपनी माँ के साथ काम करने जाएंगी, कुछ हो जाएगा ना। स्टोरी। इसके अलावा और क्या होगा, घर में तनाव क्लेश भी होंगे कि नहीं होंगे। जब पैसा नहीं होता है तो लड़ाई, जो उसके साथ फ्री में बोनस मिलता है, उसमें कोई त्योहार की जरूरत नहीं। पॉवर्टी अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आती है। When somebody lose his job ना, तो उसको ऐसा लगता है पहाड़ टूट पड़ा उस पर। अब आगे सुनिए, इसके अलावा ये सारी चीजें तो हम लोग इमेजिन कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं। जस्ट इमेजिन द पर्सन हु वाज अर्निंग ब्रेड फॉर हिज होल फैमिली, ही वाज द काइंड ऑफ लीडर ऑफ द फैमिली, राइट। डिग्निटी है ना, थोड़ी हुकूमत भी चलती ही होगी, पैसा कमा के लेके आता तो पैसे की गर्मी है थोड़ी सी, वो सामने वाले के एटीट्यूड में कुछ आता है तो फैमिली को अपने हिसाब से रूल करता होगा। काइंड ऑफ डिग्निटी जो उसकी थी। अब वो अगर उसको सपोज बीड़ी पीता होगा तो बीड़ी के बंडल के लिए भी उसको अपनी वाइफ से ही मांगने पड़ेंगे 10 रुपए। उसकी जो डिग्निटी है उस पर कितना बड़ा हर्ट हुआ होगा उसको। अब वो चीजें जो है, ये हम लोग नॉर्मल इंसान शायद हम नहीं सोच सकते। डिग्निटी वाला जो ये कॉन्सेप्ट है, ये हम नॉर्मली जब हम खुश हैं ना तब हम नहीं सोच सकते। जब हम परेशान होते हैं, जब हम उस चीज को फील करते हैं, तो इसके बराबर तकलीफ कुछ नहीं है। आत्मसम्मान जिसकी हम बात करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी। अब अगर
जब बंदे ने डिग्निटी से कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना, फिर तो कुछ भी नहीं है. अगर दो पीपल दोज हु आर वेरी स्ट्रांग इन देयर प्रिंसिपल्स, सिचुएशन हर्ट्स देम. तो ऑल दीज प्रॉब्लम हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ वन प्रॉब्लम, दैट वाज उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो उस सॉल्यूशन को, ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता था. दैट्स इट. दीज आर स्पिल ओवर इम्पैक्ट्स. यू गॉट इट. सेकंड हमने कहा इंपॉर्टेंट. सिन में सेकंड हमने कहा इंपॉर्टेंट सोशल प्रॉब्लम्स, चाहे वो ये वाली प्रॉब्लम है या बाकी प्रॉब्लम्स हैं. दीज आर वेरी मस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व. इफ यू वांट कंट्री, इंडिया टू बी get in the category of developed nations, you cannot ignore them. You need to solve all these problems. These problems are not कि जिनको हम ignore करते हैं, जिनको bypass करते हैं. These are very important because people, those who are suffering, country like India, number is very huge. कौन प्रॉब्लम ज्यादा सफर करता है? Those who can not afford. और हमारी पॉपुलेशन में बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो है. तो इसलिए इफ वी एक्चुअली वांट कि हमारा देश तरक्की करे, तो हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जरूरी है. लास्ट इज एन नेग्लेक्टेड. नेग्लेक्टेड बाय हुम? बिजनेस हाउसेस. आज कोई सा भी बिजनेस आप ले लो, हम लोग भी जब स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं, प्राइमरीली वी आर ट्राइंग टू डेवलप दैट सॉल्यूशन व्हिच गेट सोल्ड इन द मार्केट. जिसके लिए मार्केट है, जिसके लिए लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, हम वही कहते हैं कि भाई इफ यू आर कमिंग अप विद सम सॉल्यूशन एंड पीपल आर रेडी टू बाय दैट, आपका फेल होने का चांस खत्म हो गया. बट प्रॉब्लम हियर इज, जो लोग उस सोशल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, उनकी बाइंग कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी हमेशा से बहुत खराब, लो रही है. जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड दैट, जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट पे दैट, दैट्स व्हाई ऑल दीज बिग हाउसेस, all the business houses, they simply neglect these problems. Problem है, दिख रही है, सब कुछ है, but they feel that whatever I am going to create, खरीदेगा कौन? खरीदने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि इनकी तो कैपेसिटी है नहीं. That's why these problems are called spillover, important and equally neglected also. Although government is doing a great job. सरकार ने शुरू से ही, हमारी भारत सरकार की अगर हम बात करेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी प्रेजेंट गवर्नमेंट और सिंस इंसेप्शन अगर हम देखेंगे, ऑलवेज द कंसिडरेशन दैट द टॉप ऑफ द प्रायोरिटी इज पब्लिक वेलफेयर. कितनी सारी स्कीम्स, कितनी सारी चीजें चली. आई एम नॉट गेटिंग इनटू कि भाई इंप्लीमेंटेशन रिजल्ट क्या है, नहीं आए. गवर्नमेंट वाज डूइंग इट्स बिट, जो भी इससे पॉसिबल होता, they were doing all possible things, but the population, the sufferer, the user, they were such a huge, such a large population. उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो समुंदर में, खारे पानी में अगर मीठी बूंद मिलाओगे ना, उसका कोई असर नहीं होगा, वो वाला. प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इग्नोर नहीं कर सकते, सब कुछ नहीं कर सकते. हाउ वी कैन सॉल्व दिस? एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में अभी अभी आता है, हम सब लोगों के दिमाग में यादें ताजा हैं. जस्ट इमेजिन कोविड-19 ईयर 2020, राइट? Then the entire country was under lockdown condition. कितने सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल वॉक करके जा रहे थे. Who came forward to help them solve their problems? Social organization, civil society. वो लोग आगे आके, उस टाइम पे शायद लोगों ने देखा भी नहीं होगा कि मेरी जेब से कितने लग गए, कि मैंने किसी को खाना खिलाया, पानी पिलाया, कुछ भी किया. कितने सारे लोगों ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके जो है उस प्रॉब्लम को, हमने सब लोगों ने उससे थ्रू आउट हुए हम. सो ये पावर है सोशल की, ये पावर है सोसाइटी की, ये पावर है सिविल सोसाइटी की. ये जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो पार्ट है, आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत, कि भाई बेशक लिटरेचर में ये कॉन्सेप्ट जो है 80s में आया है, बट दिस वाज विद अस फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ सोसाइटी, सिविलाइजेशन. तब से ही जन कल्याण, लोक कल्याण की पॉलिसी हमारे देश में पर्टिकुलरली बहुत पहले से रही. कितनी सारी ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स किसी एक के नाम से, कुछ से लोगों ने शुरू किए, ट्रस्ट के नाम से शुरू किए. बिकॉज पीपल हैड दैट आइडिया कि भाई अनलेस वी गेट सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, मेरा खुद का राजा बनने का भी कोई फायदा नहीं है जब तक मेरी प्रजा सुखी नहीं है. यही वाली कहानी है. आप खुद को जितना मर्जी शान और शौकत, ऐशो आराम में रख लो, इफ लार्ज पॉपुलेशन, मेजोरिटी ऑफ पीपल दे आर सफरिंग, तो आपका कोई पॉइंट नहीं है. ये चीज जो है बिजनेस हाउसेस भी अब समझ चुके हैं. यस, इट वाज देयर विद द
बिजनेस फिलॉसफी में ही था हमारा। सोशल सोसाइटी को प्रायोरिटी पे रखना आज भी हमारे ग्रंथों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे, आप कोई भी देख लो, गुरुद्वारे में भी जो लोग, आप गुरुद्वारे भी कुछ लोग जाते होंगे, उसमें भी ये कहा गया है, कुरान में भी ये कहा गया है, गीता में, हमारे सारे धार्मिक ग्रंथों में ये बात कही गई कि भाई कमा रहे हो, मैं थोड़ा सा आई डोंट नो, मैं थोड़ा डिबेट ना हो जाऊं, हम लोग सब लोग लिखते हैं शुभ लाभ। व्हाट इज दैट शुभ लाभ? शुभ लाभ है क्या? द प्रॉफिट वी हैव अर्न्ड विदाउट हार्मिंग एनीवन इंक्लूडिंग नेचर, कि वो प्रॉफिट जो मैंने अर्न किया है, जिसको अर्न करते हो मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, वो लाभ कैसा लाभ है? वो शुभ लाभ है, विदाउट हार्मिंग एनीवन्स इंटरेस्ट। अनफॉर्चुनेटली वी मूव फ्रॉम शुभ लाभ टू शुद्ध लाभ। नेट प्रॉफिट होना चाहिए, सामने वाले का जो मर्जी हो जाए, मुझे नहीं मालूम, मेरा ये कॉन्सेप्ट में चेंज आया। हम लोग तो शुभ लाभ वाले लोग हैं। दैट मीन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कंसीडरिंग सोसाइटी while we are doing business was our philosophy। धीरे धीरे क्या हो गया, जब हम शुभ लाभ से शुद्ध लाभ पे शिफ्ट हुए, तो हमारा बिजनेस करने का तरीका भी क्या हो गया, स्विच कर गया, चेंज हो गया। नाउ वी वर वेरी मच कंसर्न्ड, फोकस्ड अबाउट अर्निंग ओनली, अर्निंग बाय एनी मीन। मुझे कई बार ना ये दुख होता है ये बोलते हुए, आज की जनरेशन, आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में है, कुछ लोग वर्किंग है, कुछ है, मैं लिटरली अपने जो अंडर ग्रेजुएट में जो मेरी क्लास है उनसे जब मैं बात करता हूँ, एक दिन डिस्कशन का टॉपिक था ग्रीड, कि भाई बिजनेस में ग्रीड कितनी इंपॉर्टेंट है। वी वर डिस्कसिंग एथिक्स की हम बात कर रहे थे। दुख हुआ जान के कि मेजॉरिटी ऑफ द क्लास दे फील लाइक कि भाई ठीक है, ग्रीड है तो है, हम तो बिजनेस कर रहे हैं। हम सोसाइटी, हम बाकी लोगों का तब सोचेंगे जब हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। और आपको लगता है कि जरूरतें, व्हेन वी कॉल इट ना जरूरत, इट्स वेरी, मुझे क्या चीज चाहिए जीने के लिए और मैं क्या चीजें इकट्ठी कर रहा हूं, बहुत डिफरेंस है उन सारी चीजों में। एंड पॉवर्टी लाइन तो हमने डिसाइड कर ली, प्रॉस्पेरिटी लाइन तो हमने कभी डिफाइन ही नहीं करी कि कितना आदमी जो है किससे अमीर नहीं होना चाहिए इंसान को। तो हर कोई उस अमीरी की दौड़ में, इस केस में हम लोग शुद्ध लाभ से शुभ लाभ से शुद्ध लाभ पे स्विच हो गए, और इसकी वजह से सोसाइटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो इग्नोर होती गई। लकीली आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड एवरीथिंग, धीरे धीरे बिजनेस हाउसेस दे आल्सो रियलाइज्ड नाउ कि जब तक समाज नहीं है तब तक मेरा बिजनेस भी कुछ नहीं। नाउ even big business houses, they also shifted their vision from maximizing wealth to the considering society at priority। कितने सारे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं जो आज की डेट में सोशल इश्यूज पे भी काम करते हैं, सोसाइटी के लिए भी काम करते हैं। many big names are there, स्पेशली 2013 इंडियन कंपनी एक्ट आया, राइट, जिसमें ये बोला गया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा जो आपको करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी कर दिया 2%। उसकी वजह से भी थोड़ा शुरू हो गया, ऑल्दो मैंने तो कहा ना कि तो हमारी फिलॉसफी रही है शुरू से, बट परसेंटेज डिसाइड नहीं किया। 10%, 20%, जिसको जो लगता है। कुछ लोग हैं जिन्होंने किया है, दान किया है, कल्याण के लिए लगाया है लोगों ने। तो ये जो 2% वाला जो कॉन्सेप्ट आया, उसने थोड़ा सा बिजनेस को ह्यूमनाइजेशन की तरफ ले जाना शुरू किया। आज जिस विषय पे, जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, हम बात कर रहे हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट सॉल्यूशन फॉर दीज सोशल प्रॉब्लम्स, एंड व्हाइल वी आर डेवलपिंग प्रोडक्ट सर्विस और व्हाइल वी आर इनोवेटिंग फॉर सॉल्विंग दीज सोशल प्रॉब्लम्स, हाउ वी ऑल्सो, वी मीन द बिजनेस हाउसेस, वी ऑल्सो गेट डेवलप्ड इन द प्रोसेस। तो आज हम इस चीज पे बात करेंगे, ठीक है। ह्यूमनाइजेशन ऑफ बिजनेस, न्यू डेवलपमेंट इन द बिजनेस वर्ल्ड। अब बिजनेस हाउसेस नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबली, उनको ये चीज समझ आ गई है कि बहुत हो गया ये पैसा 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 कमाना, साथ में बाकियों को भी साथ लेके चलना होगा। मैं खुद अगर बहुत तेज दौड़ते दौड़ते बहुत आगे निकल गया, साथ वाले अगर साथ नहीं है तो मेरी सक्सेस का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए
बिजनेस में नई चीज क्या हुई है कि अब बिजनेस जो है खाली बिजनेस सक्सेस मींस फाइनेंशियल सक्सेस को ही सक्सेस नहीं मानेंगे, प्रॉफिट अर्निंग को ही नहीं मानते हैं। पीपल आल्सो कंसीडरिंग कि आपके बिजनेस, आपके प्रोडक्ट की वजह से व्हाट इज दैट पॉजिटिव इंपैक्ट यू हैव क्रिएटेड इन द सोसाइटी। आपने सोसाइटी के लिए क्या चीजें की हुई हैं, वो चीजें भी कंसीडर होनी शुरू हो गई है। अजीम प्रेम जी, हम सब लोगों ने नाम सुना है, राइट? कितने सारे उनके ऐसे सोशल इनिशिएटिव्स हैं, कितने सारी ऐसी एनजीओज को, कितने सारे ऐसे सोशल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को वो सपोर्ट करते हैं टू अचीव देयर मिशन, टू अचीव देयर गोल। सिमिलरली आप लोगों ने देखा होगा, नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है ना? दे आर ऑल्सो, बड़ा नाम है हमारे देश का, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, बट दे आर ऑल्सो कंसिडरिंग कि नहीं ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलरली ये सारी चीजें जिसकी हम बात कर रहे हैं, आज बिजनेस जो है डेफिनेटली प्राइमरी गोल जो है एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट अर्निंग होता है, बट दे आर नॉट इग्नोरिंग दैट सोशल एस्पेक्ट ऑल्सो। देयर एज इन व्हेन इट कम्स टू डिफाइनिंग सोशल एंटरप्रेन्योर्स, सोशल एंटरप्रेन्योर्स भी वही एंटरप्रेन्योर्स हैं जैसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ओनली डिफरेंस इज सोशल एंटरप्रेन्योर्स प्रॉफिट अर्निंग को सेकेंडरी करते हैं, मिशन को या जो इंपैक्ट जो वो क्रिएट करना चाहते हैं, जिसको हम सोशल वैल्यू कहते हैं, सोशल वैल्यू को वो प्रायोरिटी पे रखते हैं। क्लियर है? दिस इज द प्राइमरी डिफरेंशिएटर बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स एंड सोशल एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर कौन है? जिसको हमने आज तक पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर वो लोग हैं जो क्या करते हैं, किसी एक गैप आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केट में कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर कौन है? दे आर द पीपल दोज हु कम अप विद द इनोवेटिव सॉल्यूशन टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स। एक जमाना था जब सोशल वर्क की हम बात करते हैं, और आज भी अगर हम सोशल वर्क की जब हम बात करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूंगा, इफ आई आस्क यू, इमेजिन देर इज वन सोशल वर्कर। सोशल वर्कर बोलते ही हमारे दिमाग में क्या इमेज आती है, कैसी एक इमेज क्रिएट होती है, बताना जरा मुझे। एनजीओ। सोशल वर्कर बोलते ही हमारे दिमाग में क्या आ गया? एनजीओ। ये आज की बात है, जब हमने 20, 25, 30, 40 सालों का एनजीओ का काम देखा, तब एनजीओ आ रहा है। अगर मैं सर से पूछूं, या मैं अपनी भी अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने सोशल वर्क पहले सुना तो हमें एक बड़ा सीधा साधा सा इंसान दिखा, झोले वाला, जो लोगों की हेल्प करता है, वो सोशल वर्कर। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, मॉडर्न डेज में इफ समबडी सेज दैट देयर वाज वन जर्नलिस्ट, तो जर्नलिस्ट बोलते ही हमारे दिमाग में ना ये टीवी वाले जो आते हैं ना, उस टाइप का चेहरा आएगा। पुरानी फिल्में अगर आप देखेंगे, वहां पे जर्नलिस्ट कैसा आता था, खादी कुर्ते पजामे में, वो क्योंकि वो कॉन्सेप्ट था। सोशल वर्क वाज आल्सो कंसीडर्ड दैट टाइप ऑफ। लोग क्या कहते हैं? चैरिटी। सोशल वर्क और चैरिटी का आपस में क्या क्लोज रिलेशन, कि बंदा कौन, सोशल वर्कर कौन है जो चैरिटी करता है, या अगर कोई चैरिटी कर रहा है तो उस चैरिटी को जो जिनके लिए वो चैरिटी उन तक पहुंचाने में हेल्प करता है। दिस वाज द कॉन्सेप्ट, राइट? नाउ इफ यू टेक दैट ओल्ड नोशन ऑफ ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वर्क, उसमें क्या है, if I am a social worker, whatever resources I am able to manage, I am dispersing those only. But in modern days, the concept is changed now. चैरिटी को तो अब उन्होंने सेकेंडरी कर दिया है। सोशल एंटरप्रेन्योर्स ये कहते हैं कि वी विल कम फॉरवर्ड विद दिस इनोवेटिव सॉल्यूशंस, विद इनोवेटिव प्रोसेसेस, इनोवेटिव प्राइसिंग, सो दैट पीपल विल नॉट। अब एक और चीज है, हम बोलते हैं ना चैरिटी की बात हम करते हैं। मैंने तो चैरिटी कर दी, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने तो चैरिटी कर दी, मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ, ठीक है, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, थोड़ी थी, मुझे लगा कि मैं इसकी हेल्प कर सकता हूं, मैंने इसको दे दिए, मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। सामने वाले को जिसने वो पैसे लिए होंगे उसको भी तो कुछ फील हुआ होगा। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आई कैन अंडरस्टैंड कि लोगों को लगा कि अरे फ्री में पैसा मिल गया, खुश हुआ होगा। लेकिन देयर मस्ट बी सम केसेस जिनको वो पैसे लेते हुए बहुत तकलीफ, बहुत पेन भी हुई होगी। डोंट यू फील सो? ऐसा होता होगा कि यार मुझे इस उम्र में भी इस कंडीशन में लोगों से हेल्प लेनी पड़ रही है, बहुत बुरा लगता है, बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है। ये सोशल एंटरप्रेन्योर जो है उस दर्द का इलाज है। वो ये कहते हैं कि भाई हम आपके लिए
सोर्सेज डेवलप करेंगे, आपको इस तरह से भीख में दान के ऊपर हम आपको डिपेंडेंट होने नहीं देंगे। एक एग्जांपल देता हूं फटाफट, आप लोगों को शायद थोड़ा और क्लियरली समझ आ जाएगा। सपोज देयर इज वन बेगर एट मेट्रो स्टेशन, मांगता है, हम में से बहुत सारे लोग 5-10 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के फेंक के उसको दे देते हैं। हमने क्या किया, अपनी तरफ से थोड़ी बहुत चैरिटी जो करनी थी कर दी। अब उसने उस चैरिटी को वो मांग रहा है, कितनी मजबूरी में मांग रहा है, कैसे मांग रहा होगा, तो वो तो उसका दर्द तो हम सोच भी नहीं सकते, राइट। उसी बेगर को हमने वेइंग मशीन लाके दे दी। अब लोग पैसे दे रहे हैं उसको, बदले में लोगों को यह भी पता है, आई ऑल्सो डू दिस, मुझे पता है कि भैया बहुत ज्यादा वेट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन मुझे पता है कि सामने बंदा बैठा हुआ है ना, तो मेरा फर्ज बनता है कि इसको मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूं। अगर मैं 5 रुपए देके 10 रुपए देके उसका वेट करके चला जाता हूं आगे, तो उस बंदे को ये नहीं लगता है कि मैंने इससे मांगे हैं, उसको लगता है कि मैंने ये अर्न किया है। दिस इज द डिफरेंस। सोशल एंटरप्रेन्योर्स वो सामने वाले को ये रियलाइज कराते हैं कि दिस इज योर राइट, यू हैव अर्नड दिस। सोशल मीडिया पे एक गेम में देखता हूँ आजकल, मैं बहुत एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, तो आपने भी शायद बहुतों ने देखा होगा, एक ग्रुप है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट ग्रुप, they always play some games with the community, और उस गेम में जो विनर होता है उसको खाने पीने की कुछ चीजें देते हैं, इवन जो हारता है उसको भी देते हैं। लेकिन वहां पे उनको वो क्या लगता है, उनको वो फील आता है कि ये मैंने जीता है। ऐसे आके अगर कोई बांटना शुरू कर देगा ना वो कहीं ना कहीं सामने वाले के ईमान को ठेस पहुंचाता है। तो ये जो आप कह रहे थे ना कि इक्वालिटी को, इन सारी चीजों को, ये ऐसे तरीके हैं, कहां पे आपके साथ जहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उस डिस्क्रिमिनेशन का पेन वही फील कर सकता है जिसके साथ वो हो रहा है। करने वाले को तो पता भी नहीं चलेगा, समटाइम्स तो इंटेंशनली, समटाइम्स अनइंटेंशनली भी हो जाता है, तो वो जो पेन वो फील करता है वही करता है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? यू नीड टू ब्रिंग दैट इंडिविजुअल फ्रॉम जो पिटी कंडीशन है उसको वहां से निकाल के इक्वल लाने की कोशिश करना। तो ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं। वन मोर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट, एजुकेशन इज एवरीवन्स राइट, सबको अधिकार है। जस्ट इमेजिन फैमिलीज दोज हु आर नॉट स्टेबल एट वन प्लेस, बंजारा जिनको हम कहते हैं बंजारा, उनकी तो परमानेंट स्पेसिस प्लेसमेंट ही नहीं है, तो उनके बच्चे हाउ दे गेट एजुकेटेड? इसलिए इनिशियली बहुत सारे लोगों की एजुकेशन ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं था। लेकिन मॉडर्न डेज में ऐसे बच्चों के लिए भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आगे आके उनको भी एजुकेट करती है। तो सिंपली वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस प्रॉब्लम इज देयर, और अगर हम सोचेंगे देन वी विल ट्राई टू इनोवेट द सॉल्यूशन। परमानेंट स्कूल, देखो सर्टिफिकेट के लिए स्कूल चाहिए, नॉलेज के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, स्कूल की जरूरत नहीं। 3 इडियट्स वाला याद है ना आप लोगों को? ड्रेस बदलो किसी दूसरी क्लास में बैठ जाओ, वो वाली बात। नॉलेज जिसको चाहिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ये कहानियां बहुत निकलेंगी आगे, जहां जहां आएंगी मैं सेट करता जाऊंगा जितनी मुझे याद आएंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं नाउ व्हाट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज। ये है क्या? डिफाइनिंग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल एंटरप्राइजेस। जनरली वी टॉक इन अ लूज सेंस, हम इनको तीनों को एक ही तरह से डिफाइन करते हैं और है भी इंटरकनेक्टेड है। अब क्लियरली अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं, इस चीज को समझने के लिए, जिसको हम पीपीओ फ्रेमवर्क कहते हैं, पर्सन प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटकम। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, एनी प्रॉब्लम, to solve that problem somebody need to have that idea, somebody need to have that innovative solution। और सॉल्यूशन किसको आता है? पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, दैट मीन्स पीपल। सो सोशल एंटरप्रेन्योर आर द पीपल दोज हु identify that social problem, social issue, what they feel that this is very urgent to solve, because if we ignore this problem, the large part of the society, they are suffering, just because solution is not available or it is not affordable। as in case of that cataract eye surgery we have seen, जहां पे वो अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, डॉक्टर रेड्डी अरविंद आई हॉस्पिटल, उन्होंने देखा कि यार कैटरेक्ट की वजह से ये नहीं चल पा रहा है, ये रिक्शा नहीं चला पा रहा है, या जो भी है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्यों नहीं हो पा रहा है सॉल्यूशन? व्हाई? बिकॉज दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। सो दे सिंपली इनोवेटेड द प्रोसेस को ही इनोवेट कर दिया। ये जो आइडिया जिसकी हम बात कर रहे हैं,
अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइज करने की हम बात कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है. द अरविंद आई हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डी एंड हिज टीम, they have understood the problem of this cataract, and they understood why people are not getting treated for this, because the process is very expensive. So how to make it accessible, how to make it inexpensive, they tried to innovate the process only. Generally operations कहाँ पे होते हैं? हॉस्पिटल्स में, ऑपरेशन थिएटर में. एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि हॉस्पिटल में हो रहा है, ऑपरेशन थिएटर में हो रहा है, इसलिए एक्सपेंसिव है. ऑपरेशन के बाद 3-4 दिन जो है पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, इसलिए एक्सपेंसिव है. 3 दिन का बिल भी पड़ेगा. तो दे केम विद द आइडिया कि यार कैटरेक्ट की सर्जरी में इट इज नॉट वेरी काइंड ऑफ बहुत ज्यादा कोई वुंड या ऐसा कट वाला सर्जरी नहीं है. सो पेशेंट कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ऑल्सो. सो व्हाई टू कीप दैट पेशेंट हु हैज वेरी माइनर इंजरी under observation for 3-4 days? Instead of treating them in a typical operation theater, they chose operation theater in tents. Instead of hospital, they have started treating in the camps. हॉस्पिटल कैंप में बदल गए, ऑपरेशन थिएटर टेंट में बदल गया. 4 दिन का प्रोसेस जो ऑब्जर्वेशन वाला था वो सुबह आओ, कैटरेक्ट की सर्जरी कराओ, काला चश्मा कोई भी एनजीओ फ्री में दे देता है, वो सब करो और शाम को घर जाओ. प्रोसेस ही चेंज कर दिया. प्रोसेस चेंज करने से क्या हो गया? जो सर्जरी कभी हजारों में होती थी वो कुछ 100 रुपए में होने लगी. उसमें भी उन्होंने और मॉडल डेवलप किया. दोज हु कैन अफोर्ड दे विल पे फुल, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड दे विल पे पार्शली. जो दे ही नहीं सकता, जिसमें है ही कुछ नहीं, दे विल ट्रीट देम फ्री ऑफ कॉस्ट. मोबाइल सर्जरी कैंप्स में अलग अलग जगह पे, बिलीव मी, लाखों लाखों मतलब लाखों सर्जरी हर साल होती है. नॉट ओनली इन इंडिया, बियॉन्ड बॉर्डर्स. ये पावर है इनोवेशन की. इन्होंने क्या इनोवेशन किया? इन्होंने प्रोसेस इनोवेट किया. दे हैव चेंज्ड दैट ट्रेडिशनल कन्वेंशनल प्रोसेस एंड अडॉप्टेड अ न्यू प्रोसेस एज अ रिजल्ट. सो दिस इज हाउ दे आइडेंटिफाई हु वर दैट दोस. दे वर द सोशल एंटरप्रेन्योर्स, पीपल, person. Then comes process. To achieve what they have decided, they need to follow a step by step process. किसी भी काम को करने के लिए एक प्रोसेस चाहिए, and that process of planning, designing, innovation and execution, this is called entrepreneurship. Idea to execution. Social enterprise organization. Clearly by name itself, social enterprise बोलते ही मतलब enterprise is those who are considering social welfare as their priority. Society at top, social value creation at top. बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाना. सोशल एंटरप्रेन्योर, सोशल बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इंपैक्ट क्रिएट करना. अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसा नहीं कमाते. दे डू अर्न मनी, दे ऑल्सो चार्ज मनी, देयर सॉल्यूशन इज ऑल्सो पेड और चार्जेबल, बट their priority is the impact, the mission, what they are working for. When it comes to enterprises, for-profit organization, nowadays, as we have discussed earlier also, business houses are more concerned about humanizing their business, considering society at priority. For-profit company, ऐसी कंपनी जिसका जन्म ही प्रॉफिट कमाने के लिए हुआ है, इवन दे आर मेकिंग इन देयर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी विल नॉट डिस्पर्स अमंग द शेयर होल्डर्स. वो कहां जाएंगे? दे विल री इन्वेस्ट इन द मिशन ओनली. क्लियरली लिख के करते हैं. ऐसा केसेस भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ. नॉट फॉर प्रॉफिट, एज वी हैव ऑल डिस्कस्ड, सेक्शन 25 के अंडर ये कंपनी बनती है. ट्रस्ट, फाउंडेशन जिनको हम कहते हैं. एनजीओज, हाइब्रिड ऑल्सो, फॉर प्रॉफिट भी है और दोनों नॉट फॉर प्रॉफिट भी, मतलब दे आर हैविंग द क्वालिटीज ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट प्रॉफिट. तो ये सारी की सारी क्या है? ये सोशल एंटरप्राइज. नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड सोशल वैल्यू, जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स आर दे आर कंसर्न्ड अबाउट क्रिएटिंग सोशल वैल्यू. व्हाट इज दिस सोशल वैल्यू? सोशल वैल्यू क्या है? सोशल वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, दिस इज द ऑर्गेनिक चेंज ओवर द टाइम. The organic change happened because of the intervention of that organization is considered as social value creation. Positive change in individual's life, positive change in society, positive change in society system through policy interventions.
कितने सारे ऐसे सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं, देयर आर नंबर ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर्स जिनके काम को गवर्नमेंट ने कंसिडर किया और उन लोगों को बोला कि यू प्लीज बी द पार्ट ऑफ दिस कमिटी विच इज गोइंग टू फॉर्म अ policy for such problems or such people. They are, you know, giving their inputs there. By giving their inputs in the policy making, their impact is beyond their jurisdiction. जहाँ पे वो काम करते हैं उससे कई बार national level पे हो गया. Similarly, positive impact on environment or other spillover impacts, what we have discussed. So this PPO framework, it tells that the entire journey of social entrepreneurship starts from a person to which continue to till they achieve their mission or outcome. So in short, from the perspective of social entrepreneurs, how they define this concept of social value creation, उससे पहले मैं एक और चीज आपसे पूछता हूं. सोसाइटी में अगर कोई लोग सफर कर रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम किस वजह से वो प्रॉब्लम है? कुछ नहीं सुन पाया मैं, अब बोलो. बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. देखो एक चीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वो बंदा वैसे नहीं कर पा रहा जैसे नॉर्मल बंदे को करना चाहिए. पॉवर्टी की अगर हम बात करें, क्योंकि फाइनेंशियल कैपेसिटी उसकी इतनी नहीं है कि वो बाकी सारे, जैसे हमने कैटरेक्ट वाली बात की, सॉल्यूशन तो था लेकिन इनकेपेबिलिटी थी कि पे नहीं कर सकता हूं. अब कोई फिजिकली चैलेंज्ड है, वॉक तो उसको भी करना है, कर सकता था, लेकिन ड्यू टू हिज फिजिकल कंडीशन ही कैन नॉट. दैट मींस देयर इज सम लैक, राइट? कुछ लैक है, उस लैक को हम कहते हैं इनकेपेबिलिटी. बहुत सारे लोग जो है अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है तो पता नहीं है, पता नहीं है तो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो भी इनकेपेबिलिटी है. इफ यू आर प्रोवाइडिंग राइट इंफॉर्मेशन टू राइट पीपल एट राइट टाइम, दैट इज ऑल्सो अ बिग हेल्प. दैट इज ऑल्सो, बाय डूइंग दैट यू आर क्रिएटिंग सोशल वैल्यू. लोगों को अवेयर कर रहे हो. गवर्नमेंट ने इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की, अनफॉर्चुनेटली many people, they are not even aware. वो अवेयरनेस पहुंचाना भी अपने आप में क्या है? सोशल वैल्यू क्रिएशन है. तो पॉइंट हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम है वो इनकेपेबिलिटी की वजह से. इनकेपेबिलिटी मतलब नहीं कर पाना, योग्य नहीं है उसको करने. पीपल आर फाइनेंशियली इनकेपेबल, पीपल आर, जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, इंटेलेक्चुअली, कॉग्निटिव, उसमें भी इनकेपेबल है. अवेयर नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, अवेयरनेस नहीं है. फिजिकली नहीं कर सकते, दे कैन नॉट परफॉर्म द टास्क लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स. फिजिकली इनकेपेबल है. सोशली इनकेपेबल, यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल. समाज में कुछ लोगों को ऐसे हाशिए पे रख दिया कि वो जो मर्जी कर ले, उनको जो है वो सोशली एक्सेप्ट ही नहीं करना. अपने आप में बहुत बड़ी इनकेपेबिलिटी है वो. एनवायरमेंटल, ये सारी जितनी भी तरह, तो सोशल वैल्यू क्रिएशन को इन्होंने कैसे डिफाइन किया? Social value creation can be described as an organic positive outcome of social entrepreneurial intervention. The outcome, the long-term positive change that occur to enhance the different capabilities, intellectual capabilities, physical capabilities, social capabilities, economic और environmental capabilities of the stakeholders. अगर आप ढंग से किसी भी सोशल एंटरप्रेन्योर को अगर आप देखोगे, रिसर्च करोगे, उनके जो भी इंटरवेंशंस हैं, through their intervention they are enhancing the different type of capability of their stakeholders. जिनके लिए वो काम कर रहे हैं उनकी कैपेबिलिटीज को ही एनहांस कर रहे हैं. वो उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग कर रहे हैं, फिजिकली स्ट्रांग कर रहे हैं, मेंटली स्ट्रांग कर रहे हैं, एनवायरमेंट, पॉजिटिव एनवायरमेंट दे रहे हैं, और इकोनॉमिक इनकम के डिफरेंट सोर्सेज डेवलप कर रहे हैं. अगर ये कर लिया तो कोई सी भी प्रॉब्लम देख लो, 5 तरह की कैपेबिलिटी अगर नहीं है किसी में, तब ये प्रॉब्लम है. पॉवर्टी, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी नहीं है. बहुत सारे लोग छोड़िए, एनिमल्स की बात में उस एग्जांपल को बार बार डिस्कस करता हूं. एक्सीडेंट की वजह से डॉग्स या स्ट्रीट डॉग्स या इस तरह की जो है वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, वॉक नहीं कर पाते हैं, पीछे वाला हिस्सा खराब है उनका, जिंदा है लेकिन वो घसीट रहे हैं अपने आप को. किसी ने तो सोचा होगा कि इनके लिए कार्ड जैसा कुछ बनाते हैं, उस पर डाल के आपने देखा वो कितनी खुशी खुशी दौड़ते हैं वो. तो उसने देखा कि ऐसा क्या बनाया जाए कि ये डॉग भी नॉर्मल डॉग की तरह अपनी लाइफ को लीड करे.
इनकेपेबल था, वॉक नहीं कर सकता था बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। सो दे क्रिएटेड दैट डिवाइस जिसमें उसको बिठा के वो चलना शुरू करता। ऑल दीज सोशल एंटरप्रेन्योर्स they are enhancing different type of capabilities of their stakeholders. कुछ लोग सो गए, इनको सोने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इनकेपेबिलिटी और कैपेबिलिटी का जो खेल है ये चलता कैसे है जी? अब मैं एक चीज बताता हूं, जीता जागता जिंदा उदाहरण में आई आई वाज आई हैव क्लियर्ड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन 2002। 2002 का पोस्ट ग्रेजुएट हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी, आई एम टाइम टेलिंग यू कि भाई मैं अगर चाहता 2002 का पोस्ट ग्रेजुएट हूं, 3 में 4 में 5 में कभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी आके ज्वाइन कर लेता। 13 में अगर मैं क्रैक कर पाया हूं तो 2-3 में तो और इजी होता मेरे लिए, कंपटीशन इतना नहीं होता ना तब। तो मुझे पता ही नहीं था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके भी मैं पढ़ा सकता हूँ, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है वहां पे। अवेयरनेस नहीं थी। आई वॉज स्कूल टीचर। 2002 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, 1 साल इंश्योरेंस बेचा। मेन वाइल जो है स्कूल में जॉब आ गई टीचर की, ज्वाइन कर ली। आ गई ना, अवेयर हो गया, आसपास किसी ने बोला कि अरे टीचर की जॉब आई, करे कहाँ कर लिया, उस चक्कर में लगा रहा। 2011 एक मेरा दोस्त है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करता था, हम दोनों बैचमेट्स हैं। मोबाइल कनेक्शन नहीं था उस टाइम पे, कनेक्शन में नहीं थे। तो 2011 में बाय चांस हम लोग मिले, वो घूमने आया था। जब वहां पे मिले तो उसने पूछा, हे राकेश, हे रमेश, वो वाली कहानी होगी, मेरा नाम रमेश है, उसका नाम राकेश है, हम दोनों एक बुक शॉप पे मिले थे, वो जो एक ऐड आती तो वैसा ही हुआ। तो उसने पूछा क्या कर रहा है आजकल, मैं बोला मैं स्कूल टीचर हूँ। मैं बोला तू क्या कर रहा है, कह रहा मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। मैं बहुत बढ़िया है, सही है। मुझे कह रहा तू क्या कर रहा है यहाँ पे, मैं स्कूल, मेरा स्कूल बिल्कुल पास ही में था, स्कूल वूल दिखाया उसको। तो उसने मुझे कहा यार दिल्ली चल, बहुत स्कोप है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, तेरा हो जाएगा, मुझे पता है तेरा हो जाएगा। अच्छा, उस टाइम पे मैं इग्नो से बीएड कर रहा था, टीचर तो था ही, मैंने सोचा थोड़ा प्रोफेशनली ट्रेन करते हैं अपने आप को, तो मेरी इग्नो से बीएड चल रही थी। तो मैं उसकी बातों को मैंने सुना यार, क्योंकि दिल्ली में उससे पहले कभी घूमने भी नहीं आया था। हाँ, दिल्ली दूर थी तब। तो दिस इज हाउ आई गॉट इंटरेक्टेड विद हिम अगेन, रिकनेक्टेड। तो वो मुझे जब भी शाम में कभी फुर्सत में होता था तो गालियां देके मुझे बोलता था, तू वहीं सड़, तू वहीं मर। दोस्त है ना, उसको अधिकार है। तो जब मेरी बीएड वगैरह सब खत्म हो गई तो फिर मैंने सीरियसली सोचा यार बोल रहा है तो ट्राई कर लेना चाहिए। 2013, 11 से 13, 2 साल का समय लगा मुझे भी। अवेयरनेस होने के बाद भी वो मन नहीं था, डिजायर जिसकी हम बात कर रहे हैं। 2013 आई ज्वाइन दिल्ली यूनिवर्सिटी, और थैंक्स टू राकेश दैट आज मैं आप लोगों को यहाँ पे उसकी स्टोरी सुना पा रहा हूँ। पॉइंट हियर इज, अवेयरनेस अगर नहीं है, बहुत सारी चीजें, अब मैं अवेयरनेस पे भी आऊंगा, एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो मैं उसको थोड़ा देर में कनेक्ट करूँ, मुझे याद दिलाना कि सर वो अवेयरनेस वाली बात भी करनी थी। मैं उस एग्जांपल में बहुत सारी उसमें अवेयरनेस की बात भी बताता हूँ आपको। चलिए आगे बढ़ता हूँ, सोशल वैल्यू क्रिएशन की बात कर रहा हूँ। मैं उस एग्जाम्पल में ना, आप मान नहीं रहे हो, मुझे पहले वहीं पे जाना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, एक और स्टोरी सुना रहा हूँ। अब वो स्टोरी आगे सेट हो जाएगी, मैं बता दूंगा कि वहां पे उस प्लॉट को फिट कर देना, ठीक है। 2002 जब हमारे देश में भी और ग्लोबली ये जो माइक्रो फाइनेंस बहुत चल रहा था, मोहम्मद यूनिस उनका मॉडल जो है वो बहुत पॉपुलर हो गया था। लोगों को पता लग गया था कि यार माइक्रो फाइनेंस में लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन जरूरी है, लोगों को मेन स्ट्रीम बैंकिंग और सिस्टम में लोगों को लेके आना जरूरी है। ट्रेडिशनल जो सेविंग वाला मेथड है उसको छोड़ दो, लोगों को बोलो कि भाई इसमें आए। उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बना के उनको उस तरह से कनेक्ट करने वाली ये स्टोरी उस टाइम पे चल रही थी। विजय प्रताप सिंह आदित्य, द फाउंडर ऑफ एक गांव टेक्नोलॉजी, उन्होंने ये देखा कि लोग जो है वो बैंक या इस तरह की चीजों पे नहीं जा पा रहे क्योंकि एक्सेसिबल नहीं है, दूर है, कुछ है, टेक्नोलॉजी भी इतनी। अब मान लो मोबाइल बैंकिंग तो आज की डेट में हम ऐप जिसको कहते हैं, उस टाइम पे तो ऐप जैसा कुछ नहीं था, 2002 की बात कर रहा हूं मैं। तो उन्होंने देखा कि इनको कुछ करना है सोसाइटी के लिए, तो दे स्टार्टेड दिस माइक्रो फाइनेंस काइंड ऑफ, टेक्नोलॉजी की मदद से हम कुछ ऐसा करते हैं।
उनकी टेक्नोलॉजी की मदद क्या थी, आज वो आप लोग सुनोगे तो फनी लगेगा हम सब लोगों को। वो क्या करते थे, उनका बंदा बाइक पे जाता था गांव गांव में, लोगों से बैंक के बाउचर पे फॉर्म भर के फोटो खींच के एमएमएस के जरिए बैंक को भेजता था। अब उनका पैसा जो फिर वो बैंक में डिपॉजिट होगा, वो पैसा लेके आएगा, फिर वो बैंक में देगा, अगली बार जाएगा तो वो देगा। तो दे वर डूइंग दिस एंड ड्यूरिंग द ऑपरेशन दे हैव रियलाइज्ड कि यार लोगों तो सेविंग ही नहीं है, ये तो सेविंग करने के, हम तो सोच रहे हैं कि लोग जो है ट्रेडिशनल तरीकों से सेव करते हैं, ये तो अर्न ही नहीं कर पा रहे, इनकी सेविंग क्या है। फिर जब ज्यादा रिसर्च हुआ, व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू अर्न, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। अब खेती कर रहे हैं तो उस पे उनकी उतनी ही बचत हो रही है जितने से उनका घर बार चल पड़ रहा है, सेविंग जैसा कुछ नहीं है। तो व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू अर्न गुड इन व्हाइल दे आर डूइंग एग्रीकल्चर। तो फिर पता चला कि लोग आज भी वही पुराने तरीकों से ही खेती करते हैं। लोग आज भी जो पुराना चल रहा है कि इस मौसम में ये फसल, इस फसल पे ये खाद, यही कॉन्सेप्ट चल रहा है, यही वाला बीज, पुरानी फसल से ये बीज रख लो, ये बाकी खा लो, बेच लो, जो मर्जी करो, वही चल रहा है उनका। बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर कि साइंटिफिकली बहुत सारी चीजें एडवांस हो गई है, खेती एडवांस हो गई है, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, पीपल वर लैकिंग इन अवेयरनेस। अब उस अवेयरनेस के गैप को, इनकैपेबिलिटी को, अब मैं आपका पॉइंट सॉल्व कर रहा हूं, उस इनकैपेबिलिटी को उनको देखे कि लोगों को कैसे कैपेबल बनाया जाए। लोग उन्होंने देखा कि इंफॉर्मेशन तो है बहुत सारी अवेलेबल, लेकिन वो उनकी लोकल डायलेक्ट में नहीं है। पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज बैरियर भी इनकैपेबिलिटी है। अब उन्होंने क्या किया, अवेयरनेस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है। तो दे केम अप विद अ मॉडल जहां पे उन्होंने कहा कि इस नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे तो जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बैठे हुए लोग हैं, टीम है, वो आपको आपकी भाषा में जागरूक करेंगे, आपकी समस्या का समाधान आपकी भाषा में देंगे। अब उन्होंने जो अवेयरनेस की इनकैपेबिलिटी थी, लोगों को उनकी भाषा में बोलते हुए समझा के केपेबल बना। समझ आ गया? कहानी यही खत्म नहीं, सारी चीजें सही हो रही थी। वो 120 या 180 रुपए ईयरली चार्ज करते थे सब्सक्रिप्शन का। 2 साल 3 साल के बाद उन्होंने देखा कि लोग वो सब्सक्रिप्शन रिन्यू नहीं कर रहे हैं। अब रिन्यू नहीं करने, क्यों रिन्यू नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में भी जांच होती है, रिसर्च हुई। तो ऐसी गैदरिंग में जब बैठे थे तब बात हुई कि भाई व्हाई यू आर नॉट रिचार्जिंग, क्यों आप लोग रिचार्ज नहीं कर रहे हो, उसको रिन्यू क्यों नहीं कर रहे हो। तो उनमें से एक, ये विजय प्रताप सिंह आदित्य ने मुझसे खुद कहा है। तो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो मेरी पीएचडी के एक केस स्टडी थे। ही सेड कि रमेश, उस मीटिंग में एक बुजुर्ग आदमी खड़े होकर बोला कि क्या फायदा है हमें ये करने का, जब हम कम उगाते थे तब भी इतने ही पैसे मेरे घर पे आते थे, अब हम थोड़ा ज्यादा उगाते हैं, पैसा उतना ही मेरे घर पे आता है, तो 120 रुपए भी आपको क्यों दूं। डिमांड और सप्लाई का भी तो चक्कर है ना, जब सप्लाई कम होती है तो प्राइस थोड़े हाई होते हैं, उतना पैसा मेरे घर पे आ रहा है, सपोज 10,000 रुपए, अब बढ़ा दिया, क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस कम हो गया, फिर मैं ज्यादा बेच रहा हूं, पैसा 10,000 ही आ रहा है मेरे पास। डोंट यू फील ये भी एक प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे को आपका रिचार्ज करने से पहले भी 10,000 ही घर पे आता था, आपके प्रॉब्लम, आपके सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन बढ़िया है, हमें फायदा भी हो रहा है, इससे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन ये जो ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है खरीद तो कोई नहीं रहा है, उसी प्राइस पे बेचना पड़ रहा है अपने को, तो इसका कोई सॉल्यूशन बताओ तो हम रिचार्ज करें। अब इसका क्या सॉल्यूशन होगा, बेचने का कोई तरीका चाहिए ना, जैसे हम कह रहे हैं कि भाई ये सारी चीजें। तो उसी बुजुर्ग ने कहा कि आप इतने साल से हमारे साथ काम कर रहे हो, आप क्यों नहीं खरीदते हो हमारा प्रोडक्ट। माइक्रो फाइनेंस की कंपनी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी, एग्रीकल्चर में घुस गई, फार्म एडवाइजरी, दूसरा वर्टिकल शुरू हुआ, वो भी दोनों सही चल रहे थे। सामने तीसरे एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि माल नहीं बिक रहा है उनका सही से, सप्लाई चेन में भी आ गया। आज एक गाउन टेक्नोलॉजी 350 से ज्यादा प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचता है, डायरेक्ट फार्म टू कस्टमर। ये इनकेपेबिलिटीज का ही सॉल्यूशन करते करते लोग बेच नहीं पा रहे थे, उनको बेचने के लायक बनाए, उगा नहीं पा रहे थे, उगाने के लायक बनाए। जो लाइक बनाते जा रहे हैं, जब आप लाइक बनाते जाते हो तो फिर लोगों की लाइफ बनती है, जिसकी मैं बात करता हूं। सोशल वैल्यू कौन कौन से एस्पेक्ट है इस पे बाद में आता हूं, अब आपने मुझे छेड़ दिया तो ये पढ़ लो।
चलो मैं थोड़ा सा उसका वो कंसिडर करता हूँ, लोग बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। अगर आप किसी आदमी को एक टाइम बर्गर दोगे तो भैया एक टाइम का, दिन का भी नहीं, भूख चीज ऐसी है, लगती है, कुछ मत करो, खाओ, बैठो आराम से, तब भी भूख लगनी ही लगनी है, समझ गए। अगर आप किसी को एक टाइम का मील खिलाओगे तो आप उसकी प्रॉब्लम को टेम्परेरीली थोड़ी देर के लिए आप क्या कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो, प्रॉब्लम फिर से आएगी, भूख फिर से लगेगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि व्हाई डोंट यू टीच हिम हाउ टू फिश। अगर आप उसको सिखा दोगे कि मछली कैसे पकड़नी है तो वो जाएगा, पकड़ के ले आएगा, जब जब भूख लगेगी पकाएगा, खाएगा, मस्त रहेगा। तो ये तरीका है, सोशल एंटरप्रेन्योर्स यही करते हैं। एम्पथी और सिंपथी में यही फर्क है। सिंपथी में मैंने देखा मेट्रो स्टेशन पे एक लड़का है, रो रहा है ना, एक्टिंग कर रहा है, बेशक रोने की मुझे पता है, लेकिन उसकी एक्टिंग से मैं इतना इम्प्रेस हो गया, चल बेटा तेरे को मैं यहाँ पे कुछ खिला देता हूँ, पैटीज बर्गर कुछ भी खरीद के दे दिया उसको। उसका रोना तो मेरे समोसा खाने के बाद भी चालू है, क्योंकि उसको सिखाया ही यही है। पॉइंट हियर इज, हम सोशल एंटरप्रेन्योर्स दे डोंट ट्रीट सिम्टम्स, दे ट्रीट रूट कॉजेस। सिम्टम को ट्रीट करेंगे तो आप प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए टर्मिनेट करोगे, वो फिर से वापस आएगी। भूख लग रही थी, कुछ खाया, किसी ने खिला दिया, उसने बर्गर खिलाया था, अच्छा वाला था, अगली बार कोई आया उसने ऐसे ही कुछ खिलाया, कंपैरिजन भी हो गया, भूख और बढ़ गई, कि क्या ही फायदा यार। तो ये तो लगनी ही लगनी है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि आप अगर किसी भी प्रॉब्लम का टेम्पररी सॉल्यूशन अगर आप बनाओगे तो प्रॉब्लम दोबारा खड़ी होगी। And that's why it is important, you need to understand why that problem is there and how my solution, my innovation is going to eliminate that root cause. अगर मैं रूट कॉज को ट्रीट करूंगा तो वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, वो परमानेंटली खत्म हो जाएगी। तो ये टीच अ मैन टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर लाइफ टाइम। आप उसको इस लायक बनाओ कि रूट कॉज खत्म हो जाएगा तो वो इंसान अपने आप अपना ख्याल रखने लायक हो जाएगा। जब वो अपना ख्याल रखेगा तो अपने साथ वालों का भी ख्याल रखेगा। अरविंद आई हॉस्पिटल ने यही करा था, उसने उसकी कैटरेक्ट की सर्जरी करके उसको वापस काम पे लगाया, उसकी फैमिली की इनकम रिस्टोर हो गई, बच्चों की एजुकेशन रिस्टोर हो गई, वाइफ फिर से थोड़ा सा बर्डन से कम हो गई, और उससे भी बड़ी बात, उसका जो लाइफस्टाइल, डिग्निटी जो भी था, वापस रीगेन कर लिया। वो चीजें तब होंगी जब आप उसका परमानेंट सॉल्यूशन करेंगे। अब बारी आती है, होगा कैसे, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे होगी, सॉल्यूशन कैसे डेवलप होगा, क्या कैपेबिलिटीज हम डेवलप करेंगे और उसके रिजल्ट में क्या होगा। हमने सबसे पहले कहा कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और इनकैपेबिलिटी। जब हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो एक चीज याद रखिएगा, प्रॉब्लम मींस द पर्सन इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, दैट्स इट। कोई सी भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वो इंसान जो सफर कर रहा है, वो जानवर या जो भी कोई भी चीज है, वो सफर इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं कर पा रहा, अपने आप को सही नहीं कर पा रहा। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक और एग्जांपल ताजा ताजा याद आया मेरे को, फ्रेश। यमुना की हम सब लोग बात करते हैं, यमुना क्लीनिंग, यमुना क्लीनिंग, इतने सारे प्रोजेक्ट चला दिए हमने, गंगा क्लीनिंग, यमुना क्लीनिंग, सारी क्लीनिंग, है ना। कोविड के दौरान ऑटोमेटिकली सब कुछ साफ भी होने लग गया, हर चीज का सॉल्यूशन होता है। हमने क्या कर दिया उस चीज को, वो उसकी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा जब हम एक्सप्लॉइट करेंगे तो वो खराब ही होगी। नॉर्मली जब रहने दिया तो वो ट्रीट करने लग गया था अपने आप को। ये जो इनकेपेबिलिटीज है ना, ये इनकेपेबिलिटीज इस वजह से है क्योंकि जितना कचरा हमने यमुना में, गंगा में डाला है, जो नेचुरल सिस्टम है उसकी कैपेसिटी से बाहर है, वो इसलिए खराब है। जो नेचुरल कैपेसिटी के अंदर अगर हमने उसमें डाला होता तो वो ऑटोमेटिकली ट्रीट कर रहा होता। ये इनकेपेबिलिटी ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है, कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं। सिस्टम जितनी चीजें हैंडल कर पाता है, अगर उससे बाहर की चीजें हो जाएंगी, इनकेपेबल हो जाएगा, तो सारी चीजें खराब ही होंगी। इस हॉल की कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 300, 200 जो भी है, कैपेसिटी है ना, 2000 लोगों को, 1000 लोगों को ठूसूंगा यहाँ पे तो क्या होगा, हम तो होगा ही होगा। बिल्डिंग में भी कांच टूटेंगे भाई, जाहिर सी बात है, धक्का लगेगा, इधर उधर हो जाएगा, पागल हो जाएंगे लोग, है ना।
बियॉन्ड कैपेसिटी कोई भी चीज़ जब मेरी कैपेसिटी से बाहर, या जो मुझे चीज़ें चाहिए वो कैपेबिलिटी उसको मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो सारी समस्या वहीं से है। तो ये सोशल एंटरप्रेन्योर्स यही कहते हैं कि आइडेंटिफाई दी इनकैपेबिलिटीज। इनकैपेबिलिटी किस वजह से हो सकती है? ए, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। कोविड के दौरान लोग मर रहे थे, परेशान हो रहे थे क्योंकि वैक्सीन या ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं था। दैट वाज वन प्रॉब्लम। बाय डेवलपिंग दैट वैक्सीनेशन केपेबल बनाया। समटाइम्स नॉन अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्रोडक्ट एंड सर्विस हैं, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। और जस्ट इमेजिन कोविड के दौरान गवर्नमेंट ने तो फ्री में या थोड़े बहुत पैसे लेके लगवा दिए लोगों को। सोचो अगर उस टाइम पे पेटेंट करके कुछ करके उसको जो है, जो बिजनेस इसने भी बनाया, कुछ 4 बिजनेस हाउसेज के पास होता उस टाइम पे, तो लाखों रुपए करोड़ों रुपए में भी बिकता वो इंजेक्शन, करोड़ों में बिकता। पैसा तो खूब बनाते लेकिन जनता बहुत खत्म हो जाती, अफोर्ड नहीं कर पाती। तो सम टाइम दिस नॉन अफोर्डेबिलिटी इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। इसीलिए जो पब्लिक गुड्स होती हैं, ऐसी चीजें जो सोसाइटी को लार्ज स्केल पे हेल्प करती हैं, उस पर पेटेंटिंग भी नहीं होती है, उसमें पेटेंट भी नहीं देते। उनको पता है कि भाई ये चीज जो है मास रिक्वायरमेंट है। तो एज इन केस ऑफ अरविंद आई हॉस्पिटल वाले केस में अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, प्रोडक्ट तो था, अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, तो उसको कैसे बनाना। एक और चीज आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कन्वर्जन फैक्टर्स। प्रोडक्ट होना, उसका उस समस्या के समाधान के लिए यूज करने के पीछे बहुत सारे कन्वर्जन फैक्टर भी होते हैं। अगेन कोविड का ही केस चल रहा है तो कोविड की बात करते हैं। कोविड के दौरान हम सब लोगों ने देखा कि सारे स्कूल कॉलेजेस सब सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद हो गए एंड वी वर स्विच टू ऑनलाइन। ऑनलाइन पे स्विच हुए। जिन शहरों में इंटरनेट अच्छा था, जिन जगहों पे इंटरनेट बहुत बेहतर था, वहां पे ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन लर्निंग इतनी ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुई। अगर इंपैक्ट हुई तो वो यूजर के वजह से हुई होगी कि उसने फोटो लगा कर खुश होकर बैठा, वो अलग कहानी है। बट जो कन्वर्जन फैक्टर जिसकी मैं बात करता हूं, आपको लगता है कि सेम जो एजुकेशन या सिस्टम जो दिल्ली में, मुंबई में या कहीं और जो सिटीज में चला होगा, गांव देहात में वैसे ही चला होगा? हिमाचल की मैंने कितनी सारी खबरें देखी, उत्तराखंड की कितनी सारी खबरें देखी, जहां पे बच्चे जो है ऑनलाइन पढ़ने के लिए कहीं पे चोटी पे जाना पड़ता है क्योंकि एयरटेल का या किसी का टावर वहीं पे आता है, लोग घर पे बैठ के नहीं पढ़ सकते। ये है कन्वर्जन फैक्टर। कितने सारे देखो, हेल्थ एजुकेशन हर किसी का राइट है कि एम्बुलेंस तो शहरों में तो नॉर्मल आम बात है। हिली एरियाज में जहां पे आज भी गांव में जो सड़क नहीं पहुंच रही है, एम्बुलेंस का क्या फायदा भाई उसको? रोड इज अ कन्वर्जन फैक्टर। इंटरनेट, कोविड अगर 2010 में आया था, 15 में आया होता, जब जियो ने घर घर तक इंटरनेट नहीं पहुंचाया था, तो क्या एजुकेशन ऐसी हो पाती जैसी आज हुई? कन्वर्जन फैक्टर। तो लैक ऑफ कन्वर्जन फैक्टर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। समटाइम्स you develop your solution, you modify your solution in a way that conversion factor का जो लैग है उसको आप कंप्लीट करते हो। हिली एरियाज में एम्बुलेंस के लोगों ने बाइक के पीछे कार्ड लगा के एम्बुलेंस बनाए हुए देखे होंगे आपने भी सोशल मीडिया पे। इनोवेशन, ऐसा इनोवेशन करना कि जहां पे जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरह की चीजें डेवलप करना। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम और इनकेपेबिलिटी। ये प्रॉब्लम किस वजह से हो सकती है? नॉन अवेलेबिलिटी, नॉन अफोर्डेबिलिटी या इनएफिशिएंट कन्वर्जन फैक्टर। इन चीजों को अगर हम कैटर करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनको हम समझ जाएंगे तो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली कि लोग क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहां पे ये चीज नहीं है। लोग क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। जैसा हमने बोला ना कि लोग क्यों ज्यादा नहीं उगा पा रहे थे उस केस में, एक गांव टेक्नोलॉजी के केस में, क्योंकि वो पुरानी पुरानी तरीके की खेती कर रहे थे। तो पुरानी तरीके की खेती को कैसे उन्होंने इनोवेट किया, उसका सॉल्यूशन फार्म एडवाइजरी शुरू कर दी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके। बस लोग बेच नहीं पा रहे हैं अपने प्रोड्यूस को क्योंकि सही प्राइस नहीं मिल रहा है। सॉल्यूशन क्या डेवलप किया? सप्लाई चेन, खुद से अपने आप से बेचेंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा क्यों हो रहा है, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। आप तो ऐसे नहीं थे। ऑल द बेस्ट।
देखो हर जगह पे ना कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन किसी ना किसी ने जुगाड़ करके करा हुआ ही है। बस हमें एज अ सोशल इनोवेटर हमें देखना है कि हम कैसे कर सकते हैं। दूसरी मैंने बात बोली, जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि ये इनकेपेबिलिटीज कर ली, तो इसका इनोवेटिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो डेवलप करना है। अब वो सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, और जब आप रूट कॉज पकड़ोगे तो उसको सॉल्व करने का सॉल्यूशन बनाएंगे। एक चीज ध्यान में रखिएगा, सोशल एंटरप्रेन्योर्स दे ट्रीट कॉज, रूट कॉज, नॉट दी सिम्टम्स। सिम्टम को ट्रीट करेंगे तो टेम्परेरी होगा, एंड हाउ वी कैन, बाय डेवलपिंग। और जब हम ये इंटरवेंशंस डेवलप कर रहे हैं तो उनमें किस चीज का ध्यान में रखना है कि लोगों को मेरे इनोवेशन से, मेरी इंटरवेंशन से लोगों का इंटेलेक्चुअल वेलबींग हो रहा है कि नहीं है, एनहांसमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, लोगों का फिजिकल वेलबींग हो रहा है कि नहीं है, फिजिकली वो अच्छे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सोशली वेलबींग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंटल वेलबींग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिस इज वेल अल्टीमेटली जिस सोशल वैल्यू की हम बात करते हैं वो सोशल वैल्यू है क्या? सोशल वैल्यू है लोगों का भला करना। लोगों का भला हम कैसे कर सकते हैं? उनका मेंटल इंटेलेक्चुअल वेलबींग करके, उनके मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को एनहांस करके, फिजिकल कैपेबिलिटी को एनहांस करके, सोशल कैपेबिलिटी को एनहांस करके। सोसाइटी में लोगों को इक्वली ट्रीट अगर हम करेंगे तो आपको नहीं लगता है कि उसके अंदर भी एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस होगा? तो वो इक्वलिटी की जब हम बात करते हैं, जब आप उसको मौके देंगे, जब आपको, मैं ट्राइबल कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ, सोशल जस्टिस अगर नहीं होता, ट्राइबल की अगर वैकेंसीज या सीट्स अगर नहीं होती, तो शायद मैं वहां से यहाँ भी नहीं आ पाता। मुझे ये मौका मिला, उस मौके पे मैंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन वो मिला, वो इक्वालिटी के चांसेस हैं। तो पॉइंट हियर इज कि आप लोगों को सोशली कैसे ट्रीट करते हो, सोशल वेलबींग पे कितना आपका कंसिडरेशन है, कितना ध्यान आप रखते हो, आपके इंटरवेंशन से सोसाइटी में क्या चीज पॉजिटिव होती है। एक और है, रुक जाओ, अभी इसको इतना हाफ क्लिक करोगे तो मजा नहीं आएगा। नाउ सी, जब आप ये सारी कैपेबिलिटीज डेवलप करते हो, जब ये कर रहे हो तो जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी भला होता है, वो भी डेवलप होती है। सेम केस, फार्म एडवाइजर माइक्रो फाइनेंस में आए थे, गांव गांव जाके पैसा इकट्ठा करके बैंक पहुंचाते थे। एक प्रोडक्ट था, एक प्रॉब्लम सॉल्व की, दूसरी प्रॉब्लम आई, दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, दूसरा वर्टिकल शुरू हो गया। बाय डूइंग, बाय डेवलपिंग दीज कैपेबिलिटीज, आप एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर, सोशल एंटरप्राइज, आप खुद भी डेवलप होते हैं। एंड हाउ यू गेट डेवलप? न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज गेट एडेड टू योर इंक्रीज सेल, बिजनेस डेवलपमेंट या बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, सॉरी, एंड इंप्रूव्ड गुडविल। जब आप पॉजिटिव चीजें, अच्छी चीजें करेंगे तो ये सारी चीजें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें एक मिनट भूल जाऊंगा, इसमें एक चीज याद रखने वाली ये है, ये वो वाली बात है, आप किसी का भला करोगे तो ऊपर वाला आपका भला करेगा, बोलते हैं वो वाली बात है। सोशल एंटरप्रेन्योर्स यही करते हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दी स्टेक होल्डर्स, एंड इन रिजल्ट दे ऑल्सो गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट। जितना आप देखो आज की डेट में, why we say that customer is king, why people are talking about maintaining long term relation with customer, क्योंकि उनको पता है कि आज जो इस रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए हम जो स्पेंड करेंगे, दैट विल पे अस बैक, वो हमारे वापस मल्टीपल टाइम आएगा। ये अंडरस्टैंड कर लिया लोगों ने। पीपल आर डूइंग बिजनेस कंसिडरिंग दैट द कस्टमर इज नॉट जस्ट वन टाइम कस्टमर, he or she is going to stay with us for a long time. They are a satisfied customer is always a brand ambassador for your product. ये सारी चीजें तब होंगी जब, और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में तो मजेदार बात ये है, शुरू में आपको बोलना पड़ता है कि मैं सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बाद में आपका काम होता है। पीपल रिकॉग्नाइज यू बाय योर वर्क, द इम्पैक्ट यू हैव क्रिएटेड। आप किस मिशन के लिए लगे हुए हो, पीपल कंसीडर दैट। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक अच्छा डोमेन है, अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे हम बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं। अब अगला सवाल आया, सोशल इनोवेशन क्या है? इनोवेशन तो हमने पढ़ लिया, अब सोशल इनोवेशन क्या है? जिस तरह से हमने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन किया कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सॉल्यूशन फॉर प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, है ना।
सोसाइटी की किसी भी प्रॉब्लम के अराउंड जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको बेचते हैं, तो वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है. सिमिलरली सोशल इनोवेशन refers to developing and implementing new solution to the social problems or challenges intending to improve the well-being of the individuals, community and society as whole. It focuses on creating social value rather than just financial profit. Addressing issues like poverty, inequality, environmental sustainability, healthcare, education, etc. Social innovation can be a new product, service, program, processes, and business model that meet unmet social need in a way that traditional method may not. Social innovation क्या है? सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का इनोवेटिव सॉल्यूशन. अब वो सॉल्यूशन नया प्रोडक्ट भी हो सकता है, न्यू सर्विस भी हो सकता है, प्रोसेस भी हो सकता है, बिजनेस मॉडल भी हो सकता है. कुछ भी करके हम जो भी कर रहे हैं उससे अगर हम सोसाइटी का भला कर पा रहे हैं, सोसाइटी के लिए कुछ पॉजिटिव चीजें कर पा रहे हैं, तो हम सोशल इनोवेशन कर रहे हैं. यस प्लीज. लेंगे ही राइट. ये ना, ये इनोवेशन है, बिजनेस मॉडल का ही इनोवेशन, जिसमें आप उनको बोलते हैं कि भाई देखो आपका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है. हेल्प कर रहे हैं. आपने देखा होगा ना, बहुत सारे एक सोशल मीडिया पे एक और चीज़ आती है. लखनऊ में ये कहाँ पे जो एसिड अटैक वाली जो लड़कियां जो रेस्टोरेंट चलाती है. यस. तो ये क्या कहानी है, क्यों, किस पर्पज से है? उनको भी एक डिग्निफाइड लाइफ लीड करने का रिकग्निशन, वो सारी चीज़ें. तो ऐसे कुछ भी चीज़ें जो आपको लगती है कि आप कोई चीज़ ऐसी करेंगे जिसकी वजह से सोसाइटी में किसी कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है, वो इनोवेशन सोशल इनोवेशन कंसिडर. ठीक है. बहुत सारे. हाँ यस प्लीज. कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, सोसाइटी को एक साथ लेके आगे बढ़ने का ही ऑब्जेक्टिव. सोशल, मैंने कहा ना कि सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना क्यों ज़रूरी है. अगर इनको छोड़ देंगे तो हम जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं वो पहुँच ही नहीं पाएंगे. इसलिए ये प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम, छोटी बड़ी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ले लो, उसको सॉल्व करना ज़रूरी है. और बिजनेसेस क्या करते हैं, वो इन चीज़ों को करने के साथ साथ उस चीज़ का बेनिफिट भी लेते हैं. वो अपने आप को दिखाते हैं कि हम सोशली कंसर्न्ड बिजनेस है. एक एक ऐसे ही मुझे केस याद आ रहा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, है ना, कि एक एयरलाइन से जब एक फ्लाइट में एक बहुत सुंदर सी लेडी के पास एक बहुत अगली सा बंदा बैठता है ना. ठीक है. वो बड़ी कंप्लेंट करती है कि मेरे आप लोगों की वजह से मेरा जो है वो ट्रैवल जो है वो एक्सपीरियंस खराब हो गया. वो कहते हैं कि भाई ठीक है हम करते हैं कुछ, तो उस बंदे को उठा के बिजनेस क्लास में बिठा देते हैं. जबकि वो एक्सपेक्ट, अगर कोई दूसरा अगर नॉर्मल देखे तो बोलेंगे कि उसको ये खराब नहीं होना चाहिए इसका एक्सपीरियंस, तो इसको नहीं, उन्होंने उसको कहा कि यू डिजर्व दिस, इसका एक्सपीरियंस हम बेटर करेंगे. तो ये अप्रोच है डिफरेंटली करने की. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाउ टू आइडेंटिफाई सोशल नीड, कैसे हम कर सकते हैं. सिंपल सी बात है. देखिए एक चीज है, सोशल इश्यूज, सोशल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की जब हम बात करते हैं, समटाइम्स बहुत सारे ऐसे केसेस है जहां पे लोगों ने खुद से सफर किया है. जिसने सफर किया है वो भी उस चीज के बारे में सोचता है कि नहीं यार,
मैंने सफर किया है, मैं लोगों को नहीं, वो पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है। अगर पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है तो एम्पथी और डिजाइन थिंकिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, ऑब्जर्वेशन, कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि सोसाइटी में क्या चीज प्रॉब्लम है, किस इश्यू की वजह से सारी चीजें हो रही हैं, तो वी स्टार्ट गैदरिंग दैट इंफॉर्मेशन। तो जब हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, सबसे पहले आता है डेटा गैदरिंग, रिसर्च, टॉकिंग टू द स्टेक होल्डर्स एंड आइडेंटिफाइंग द गैप, व्हाई दिस इज हैपनिंग, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। एज इन केस ऑफ एक गांव टेक्नोलॉजी के केस में हम बात कर रहे थे, हमने देखा कि भाई उनकी सेल्स तो मतलब प्रोडक्शन तो हो रही है, सेल्स नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, उनसे बात की, लोग रिचार्ज नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, गैप, बात करना, स्टेक होल्डर से बात करना बहुत जरूरी है। ऑल्दो वी स्टार्ट विद हाइपोथेसिस, हम हाइपोथेसिस से शुरू करते कि अच्छा ये इस वजह से हो रहा होगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही हो, बहुत बार वो गलत भी हो सकता है। टू गेट क्लैरिटी वी नीड टू टॉक टू देम, वी नीड टू गेट their version or their perspective, how they understand. So that's why it is important, empathy and understanding. Spend time with communities. उन लोगों को जब आप समझेंगे, उनसे जब आप बात करेंगे, तब आप लोगों को सही सॉल्यूशन, सही प्रोडक्ट सर्विस आप डेवलप कर पाओगे। अदरवाइज क्या है, मैंने सोच लिया अरे ठीक है। अब एक चीज मैं बताता हूँ आपको, बिजनेस का एक एग्जांपल हम लेते हैं। आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया चल रहा था, सडनली आपके प्रोडक्ट की सेल्स गिर गई। अब आप अगर खाली अज्यूम करके इसको सॉल्व करने लग जाएंगे तो कितने सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कोई सोचेगा कि यार शायद प्राइस ज्यादा हो गया, मैं प्राइस कम कर देता हूँ। कोई सोचेगा कि यार शाहरुख खान से एंडोर्स करवा लेता हूँ। कोई सोचेगा कि नहीं, मैं विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी से एंडोर्स करवा लेता हूँ। हो सकता है कि रीजन कुछ और हो। आपने एंडोर्समेंट पे, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर लिया, आपने प्राइस भी कम कर लिया, जबकि बाद में पता चला कि आपका प्रोडक्ट जो है वो सही टाइम पे सही जगह पे डिस्प्ले ही नहीं हो रहा है। जो स्टोर कीपर्स हैं वो प्रॉपर वो ही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये है क्या प्रोडक्ट, कैसे बेचना है, तो इसलिए वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, इसलिए आपकी सेल्स नहीं हो रही। तो आपने दवाई खाई मगर गलत, सही नहीं, टाइम भी सही था लेकिन गलत चीज की दवाई खा ली आपने। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि रोग क्या है, तो रोग जानने के लिए यू नीड टू एम्पैथाइज एंड अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू इंटरेक्ट विद दी स्टेक होल्डर्स। जब आप उनसे इंटरेक्शन करोगे तब आपको क्लैरिटी होगी, वो आपको बता देगा कि ना व्हाई दिस प्रॉब्लम इज देयर। बेसिकली ये जो गैप जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम ये गैप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाई, व्हाट काइंड ऑफ इनकैपेबिलिटी इज देयर, व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू डू इट प्रॉपर्ली। सो identifying gap here means we are trying to identify kind of incapability and what we can develop to make them capable. Ideation, आइडिएशन हमने पढ़ा हुआ, आपको याद होगा, किसी एक प्रॉब्लम के पॉसिबली कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, याद है, याद आया कुछ। आइडिएशन मींस हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि इस प्रॉब्लम के पॉसिबली कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। So this is the stage where we brainstorm, gather diverse group of people to generate the wide range of ideas कि possibly क्या क्या चीजें हो सकती हैं। डिजाइन थिंकिंग, we all have seen, डिजाइन थिंकिंग में कितने स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। कैन वी रिकॉल दैट? फर्स्ट वाज, अरे पढ़ तो लो, empathize, define, ideate, prototype and test। एम्पैथाइज करो कि प्रॉब्लम क्यों है, डिफाइन करो कि उसको रिसर्च करके कि इस वजह से है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसमें से जो बेस्ट है उसको पिक करो, उसको प्रोटोटाइप बनाओ और यूजर को यूज करने दो, टेस्ट करो उसको। अगर आपको लगता है कि कुछ दिक्कत है उसमें तो उसको इटरेट करो, मॉडिफाई करो, और मॉडिफाई करने के साथ ही आपका प्रोडक्ट बेटर और बेटर होता जाएगा। आइडिया जनरेट करना और सॉल्यूशन डेवलप करने के लिए, जब आपने आइडिया से सारी चीजें होगी, कॉन्सेप्ट डेवलप करके, ये चीज बहुत जरूरी है, कोलैबोरेटिव डिस्कशंस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव पता होने चाहिए। जिस एंगल से, जिस नजरिए से चीजों को मैं देख रहा हूं, हो सकता है कि वो नजरिया, वो एंगल परफेक्ट ना हो, फाइन लास्ट ना हो सकता है कि किसी दूसरे से बात करने से मुझे उसके बारे में आई गेट some different aspect, different knowledge, and I may also start thinking on दैट वे, और probably
In collaborative solutions, your solution is going to be the best one. Why? Because you have considered everyone's perspective. So this is second stage. Prototyping and testing. Prototyping क्या होता है? We have discussed this. What is your understanding of prototyping? Working model, first or primary version of your product with core functionality. फंक्शनैलिटी चाहिए ही चाहिए उसमें. अगर फंक्शनैलिटी रहेगी तो क्या होगा? तब लोग आपको सही फीडबैक दे पाएंगे. फोन है ना, ये फोन मान लो, ये फोन है. मैं किसी सामने वाले बंदे को बोलूँ कि इस फोन को चेक करके बता अच्छा है या बुरा है. फंक्शनैलिटी है, वो चेक करेगा सही है कि नहीं है. अगर ये डमी होगा, मैं बोलूँगा डमी के बेस पे मुझे बता दे. फंक्शनैलिटी नहीं है तो उसका जो रिव्यू है, फीडबैक है, वो मेरे लिए सही नहीं है. क्या चाहिए आपको? फंक्शनैलिटी. फंक्शनैलिटी होना जरूरी है. प्रोटोटाइपिंग के बाद टेस्टिंग और फीडबैक. जो भी आपने क्रिएट किया है, गिव इट टू योर यूजर्स, गेट देयर फीडबैक, और उस फीडबैक के बेस पे कॉन्टिन्यूसली ट्राई टू इंप्रूव योर प्रोडक्ट. जब हम इस चीज को करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट बनेगा. रिफाइनिंग एंड स्केलिंग. इटरेशन. फीडबैक मिल रहा है, फीडबैक लिया और चुपचाप से रहने दिया, ऐसा नहीं है. फीडबैक लिया और उस फीडबैक पे काम किया. कस्टमर, यूजर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, व्हाट इज देयर एक्सपेक्टेशन, हाउ आवर प्रोडक्ट इज नॉट एज पर देयर एक्सपेक्टेशन, what we need to change, what we need to modify. If we are able to understand that, our product will get better and better. Evaluation the metrics. And that's why when you are trying to modify your product, you need to have that, आपने क्या बनाया, सामने वाले की क्या, मेजरमेंट का प्रोसेस होना चाहिए. पिछली बार क्या था, इस बार क्या है. कीप प्रॉपर रिकॉर्ड. Once your product is fine, refined, everything is okay, then it's time to scale and replicate. मार्केट में एक जगह पे, दूसरी जगह पे, जहां पे जितना पॉसिबल हो सकता है उसको फैला दो. Implementation and sustainability. Once your product is fine, you have tried, every aspect now. There is no more scope to make it further improved. Then this is time to do collaborations. सोशल में कोलैबोरेशन की बहुत पावर है. बिकॉज हर एक एनजीओ का, हर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, या हर एक सोशल एंटरप्राइज का एक एरिया होता है. सपोज वन सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग इन तेलंगाना. वी हैव डेवलप्ड समथिंग हियर इन दिल्ली. अब हम यहां से जाके उनसे बात करने लगेंगे तो पीपल विल नॉट इवन लिसन अस. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव पीपल फ्रॉम देयर. कोलैबोरेशन. जो वहां के लीडर्स हैं, वहां के जो उस मार्केट के लीडर हैं, व्हेन दे फील कि यार ये हम साथ में मिलकर काम करेंगे, जो ऑडियंस है, जो मार्केट है, दे विल आल्सो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड टू यू. कोलैबोरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो कोलैबोरेशन दैट कैन हैपन विद द गवर्नमेंट, एनजीओज, बिजनेसेस और लोकल कम्युनिटीज. एंड अगेन आफ्टर दैट monitor and continuous improve, because what we have developed as per the local resources and local requirement of the Delhi. And if you are talking about Telangana, Maharashtra, some other place, we need to change, modify. कुछ तो करना पड़ेगा. यहाँ पे तो हमने अपने यहाँ के हिसाब से बना लिया, वहां जाके कम्युनिकेशन के हिसाब से, उनकी लैंग्वेज के हिसाब से देखना पड़ेगा. सो by doing this we can create wonder. Last but not least in this process, लेक्चर में तो अभी है, measuring the impact and generating knowledge, या इसको measuring and reporting भी कहते हैं. आप क्या आपने बनाया है, क्या उसका सॉल्यूशन है, क्या उसका इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट को मेजर करते जाओ, इम्पैक्ट को कम्युनिकेट करते जाओ. बहुत सारे लोग ना एक बात कहते हैं कि लोग यार चैरिटी करने जाते हैं, किसी को हेल्प करने जाते हैं तो कैमरा लेके जाते हैं. इन अब एक तरह से लगता है कि क्या लोग यार दिखावा कर रहे हैं. दूसरा एस्पेक्ट एक और भी तो है, कितने सारे लोग और भी तो मोटिवेट होते होंगे. यूट्यूबर्स, सोशल इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं, वो जो स्टेक होल्डर है उसको ब्लर कर देंगे या कुछ कर देंगे, थोड़ा सेंसिबली वो चीजें करते हैं. उससे वो इसलिए भी जरूरी है, यू नीड टू टेल पीपल कि खाली वेल्थ इकट्ठा करके जाएंगे ना तो जाना तो खाली ही है. ठीक है,
तो बेटर है कि भाई साथ वाले को हेल्थ सपोर्ट जो हो सकता है, तो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। इसके हम बात करते हैं, मैं वायर फ्रेम में और ज़्यादा डिटेल में इसकी बात करूंगा। जब हम इसकी बात करते हैं तो अपने को ये पता होना चाहिए कि रिकॉर्डिंग और कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब ये है ब्लूप्रिंट, वायर फ्रेम जिसको हम कहते हैं। आप इसको चाहे सोशल वैल्यू क्रिएशन का वायर फ्रेम बोलो, या इसको कहो आपकी सोशल इनोवेशन का क्या वायर फ्रेम होना चाहिए। वन बाय वन विल डिस्कस दिस ऑल्सो। फर्स्ट इज स्क्रीनिंग दी अपॉर्चुनिटी। जो हमने प्रोसेस पढ़ा ना, उसी का एक्सटेंशन है कि अपॉर्चुनिटी जब हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हमने जब आइडेंटिफाई की, तो वी नीड टू सी कि वो प्रॉब्लम है क्यों, आखिर उसमें क्या चीज है। पास्ट पर्सुअल, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई की और मैं ही उसका सॉल्यूशन बना के लेके जा रहा हूं। हो सकता है कि मेरे से पहले 10 लोग और कर गए हों। वो ड्रग एडिक्ट वाला केस याद है आप लोगों को? ड्रग एडिक्ट वाले केस में जब उन्होंने उससे पूछा क्या था, ड्रग चॉइस से करता हूं, मैं मर्जी से करता हूं। उस केस में वो बच्चा जो है, वो कुछ नए लोग होंगे जिनको नहीं पता, क्विकली बता देता हूं। एक बच्चा होता है, बच्चा ही कहते हो उसको, 17-18 साल का एक बच्चा है, ठीक है, ड्रग एडिक्ट है। विशाल तलरेजा और उसकी टीम जब उसके पास जाती है तो उसको लगता है कि यार इसको ना इस चीज से बाहर निकालना है। अब बाहर निकालते हुए सबको कॉमनली एक ही चीज लगती है कि इसको क्या करो, निकालो इसको, उठाओ यहाँ से, रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज दो, रिहैब भेज दो। तो रिहैब में जब वो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, तो नॉर्मल हो जाएगी समस्या। तो ये सब हम सबके दिमाग में लगता है। लेकिन आपको मैंने एक चीज याद करवाई, अभी अगेन आई एम रिपीटिंग सेम थिंग। सोशल एंटरप्रेन्योर्स दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। ड्रग इज नॉट द प्रॉब्लम, there is something behind that, that's why this boy is into this condition। जब उससे बात हुई तो उसने बताया कि मैं ये चॉइस से करता हूं, क्योंकि मैं अगर मैं होश में रहूंगा तो मैं जहां से उठा के खाना खाता हूं, मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, डस्टबिन से, गार्बेज से उठा के खाना खाता हूं। पार्क में सोता हूं, बस स्टैंड पे सोता हूं, रेलवे स्टेशन पे सोता हूं, शाम में अगर होश में रहूंगा तो हजारों मच्छर मुझे काटेंगे, तो मैं सो ही नहीं पाऊंगा। मैं मगन हूं तो मुझे पता ही नहीं है कि किसने मेरे साथ क्या किया, नशे में हूं। जिस तरह से पुलिस वाला या कोई दूसरा आदमी मुझे लात मार के, ठुट मार के मुझे जगा के बोलता है चल यहां नहीं सोना है, अगर मैं होश में रहूंगा तो वो मेरी डिग्निटी, मेरी आत्मा को तंग करेगा। इसलिए मैं ड्रग्स चॉइस से करता। अब उसने जितनी भी चीजें बताई, उसके पीछे क्या निकला? उसके पीछे ये निकला क्योंकि वो बच्चा बचपन से ही अनाथालय में रहा है, ऑर्फनेज में था। एंड ऑर्फनेज का एक नियम है, आफ्टर सर्टेन एज दे डोंट कीप देम विद देमसेल्फ। Problem there was because when he was there with the orphanage, he was not trained or upskilled to live life beyond this। उसको बनाया नहीं गया, इस हिसाब से तैयार ही नहीं किया गया। तो they have identified कि अच्छा ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पास जॉब नहीं है, इसके पास घर नहीं है, इसके पास कुछ करने को नहीं है। तो विशाल तलरेजा एंड हिज टीम दे टुक स्टेप फॉरवर्ड। रिहेबिलिटेशन सेंटर तो ले ही गए, उसके बाद जब वो वहां से रिलीज हुआ तो उसकी ट्रेनिंग, उसकी सारी अपस्किलिंग का सारा काम किया, तो वो बच्चा नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता। हियर द कैच इज यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रॉब्लम। पास्ट पर्सुअल, पहले क्या हुआ था, वो 2-3 बार पहले भी रिहेबिलिटेशन सेंटर जा चुका, फिर से जाता, फिर वापस आता, फिर वही। एक और केस आपको बताता हूं। मैडम ज्योति शर्मा, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ फोर्स एनजीओ, दे आर वर्किंग इन वाटर एंड सैनिटेशन, हेल्थ हाइजीन, इसमें काम करते हैं वो लोग। तो वो अपनी कहानी कहती हैं कि जब मैं पहली बार एक सोशल गैदरिंग, मतलब एक स्लम एरिया में लोगों को सफाई के बारे में जागरूक करने के लिए गई थी, तो वहां पे जो है मुझे जो चीज मिली, उसने मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा विजन बदल दिया। कह रही कि जब मैं अपना भाषण दे रही थी, लोगों को बता रही थी कि स्लम एरिया है, साथ में कूड़े का ढेर, गंदी नालियां, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जब मैं लोगों को बता रही थी कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो भीड़ में उठ के एक जवान लड़का बहुत एग्रेशन से हमें बोलता है। मैंने उनको कहा कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो बच्चा एग्रेशन में बोलता है कि नहीं चाहिए हमें ये सब कुछ। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जितने भी ये लोग आए हैं, ये आपके भाषण के लिए आए हैं? ये यहाँ आए हैं इस भाषण के बाद जो चाय फ्रूटी आप देंगे उसके लिए। वो ठीक कह रहे हैं ना, देखो आप भी एग्री कर रहे हो। तो अब सामने से जो स्टेज से बोल रही होगी उसके लिए कितना एम्बैरेसिंग रहा होगा, कैन यू इमेजिन दिस? तो अब
डायलॉग एंगेज होता है। तो मैडम यहां से पूछती है कि तुम्हें क्यों नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए होगा, इन सब लोगों को चाहिए, मुझे चाहिए, मैं चाहती हूं कि ये सोसाइटी, ये लोग जो है, ये लोग भी साफ सफाई में जिए। दोनों के बीच में आर्गुमेंट होता है। तो वो सामने से कहता है कि बहुत देखे हमने आप जैसे लोग आते हैं यहाँ पे, फोटो खिंचाते, भाषण देके जाते, अपनी रिपोर्ट के बना के भेज देते, इसीलिए ये लोग जो है आपकी बातों से ज्यादा उस चाय समोसे में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो मैडम यहां से कहती है कि ये जो कूड़े का ढेर, ये जो गंदगी है, मैं साफ करूंगी इसको, क्या तुम साथ दोगे मेरा? मैं साफ करूंगी, तुम साथ दोगे मेरा? जब ये डायलॉग आता है, उसमें मैडम ने अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करते हुए लीडर बनाया। उसने ये नहीं बोला कि तुम साफ करो मैं साथ दूंगी, उन्होंने ये कहा कि मैं साफ करके दूंगी, क्या तुम साथ दोगे मेरा? तैश में था वो भी लड़का, उसने कहा कि हाँ मैं साथ दूंगा। एक ने साथ दिया तो 10 लोगों ने साथ दिया, इसलिए वो सारी चीजें धीरे धीरे चेंज होनी शुरू। वो बच्चा गुस्से में एग्रेसिव इसलिए था क्योंकि पास्ट पर्सुअल, उस मैडम ज्योति से पहले कितने सारे लोग आके सेम तरह से फोटो खिंचा के, समोसा खिला के, फ्रूटी पिला के जा चुके। लोगों को लगता है कि दिस इज गोइंग टू हैपन सेम। यहां पे सोशल एंटरप्रेन्योर, जो एक्चुअल सोशल एंटरप्रेन्योर होगा, वो डिफरेंटली सोचता है। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, whenever you get involved with any community, involve yourself. मैडम ज्योति ने भी यही बोला था कि मैं साफ करके दूंगी, क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? वहां पे उनको लगा कि नहीं यार, मैडम खुद आके करने को तैयार है, तो हमें क्या दिक्कत? पास्ट पर्सुअल, पोटेंशियल मैपिंग एंड पीपल प्रोफाइलिंग, ये भी पता होना चाहिए। पोटेंशियल मैपिंग मीन्स क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या सोर्सेज है, क्या रिसोर्सेज है, कैसे हो सकता है। पीपल प्रोफाइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज मैं यहाँ पे, ये अगर एक कम्युनिटी है जिनको एड्रेस करने के लिए मैं आया हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि इस ग्रुप में से 2-4 इन्फ्लुएंशियल लोग कौन हैं, अगर मैंने उनको मना लिया तो बाकी मान जाएंगे। पीपल प्रोफाइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि इस गांव में अगर मुझे जाके कुछ करना है तो प्रधान कौन है, मैं प्रधान को समझा दूंगा, प्रधान को समझा दूंगी, सरपंच को समझा दूंगी, तो बाकी लोग समझ आएंगे। सो यू नीड टू हैव, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये चाहेंगे कि ये कम्युनिटी उसी उसमें रहे, ये डेवलप ना हो, ये आगे ना बढ़े, तो उन लोगों से बचना भी। इसके लिए जरूरी है पीपल प्रोफाइलिंग। एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज फॉर नोइंग दी, ये सारी चीजें जब आप करेंगे तो आप रूट कॉज को आप पता कर जाओगे, तो क्या प्रॉब्लम है, ये हो किस वजह से रहा। ये है अपॉर्चुनिटी स्क्रीनिंग का। तब तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जब तक अपने को रूट कॉज पता नहीं चला। वंस वी आर एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, तब जो है हम उसका सॉल्यूशन डेवलप कर पाएंगे। अब रूट कॉज के बाद, क्यों, व्हाई वी आर डूइंग दिस, वी वांट टू ब्रिंग दैट चेंज, राइट? एज एन सोशल एंटरप्रेन्योर, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट चेंज एक्चुअली यू आर एक्सपेक्टिंग। यू शुड हैव क्लियर विजन ऑफ दैट। आपको वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार आज ये इस कंडीशन में है तो मैं इनको ना ये बना दूंगा। जितनी भी इनोवेशंस होती हैं वो इमेजिनेशन और एनविजन पावर की वजह से होती हैं। लोग इमेजिन करते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए और फिर वो विजुअलाइज करना शुरू करते हैं कि ये ऐसे होगा। जब आप विजुअलाइज करोगे तो अब आपको ये चीजें भी देखनी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह के इंपैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। रिमेंबर दैट केस ऑफ कैटरेक्ट एंड आईसाइट। डायरेक्ट इंपैक्ट ये था कि इसको ट्रीट करेंगे तो इसकी आंखों की रोशनी वापस आएगी, क्लियर। इनडायरेक्ट ये था कि अगर इसकी आंखों की रोशनी आएगी तो इसकी फैमिली, इसके बच्चे, इसकी वाइफ, सबकी कंडीशन नॉर्मल हो जाएंगी पहले जैसे। तो ये, जब आप कोई भी सोशल इनोवेशन का प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे प्रोजेक्ट की वजह से क्या क्या डायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट्स आएंगे और क्या क्या इनडायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट्स आएंगे। यू नीड टू हैव क्लैरिटी अबाउट दैट। जिसके पास ये क्लैरिटी है फिर काम इजी है। एक और जो की पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखना चाहिए जब हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं, सॉल्यूशन डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन की जब हम बात करते हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग, ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी क्लियर कि मैं ये सॉल्यूशन बना रहा हूं या बना रही हूं तो क्यों बना रही हूं। क्लैरिटी होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव में। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर, आपको पता है कि ये सॉल्यूशन क्यों बनाना है, तो आप टू द पॉइंट वैसी ही चीज बनाइए। दूसरा, ओनरशिप। जब कभी भी व्हेनेवर यू वर्किंग फॉर कम्युनिटीज, कहीं पे भी जाके जब आप बोलेंगे ना कि मैंने ये किया है,
आज की डेट में सामने वाले इतने बेवकूफ नहीं है, उनको पता होता है कि अरे बहुत खुद को मैं कर रहा है, ये सही नहीं है बंदा। हमने मिलके ये किया। सरकारी बोलते ही आज की डेट में हमारे देश में भी ये बड़ी प्रॉब्लम है, यार ये सरकारी है, सरकारी बोलती है, हर किसी को लगता है कि भाई ये तो मिसयूज करने के लिए ही बनी है, ये प्रॉपर्टी, ये जगह, ये कोई भी चीज़। जब हम उनको ओनरशिप देते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, इसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी। सपोज हम लोगों ने एक स्लम एरिया में एक टॉयलेट सिस्टम डेवलप करा। अब अगर हम कह रहे हैं कि हमने ये टॉयलेट बना के दिया है, हमारा ये टॉयलेट खराब नहीं होना चाहिए, हमारा ये कर रहे हैं ना, बोलेंगे तुम्हारा है तो तुम्हें हम बताते हैं। ईगो तो उनका भी हर्ट होगा, यूज भी करेंगे, मिसयूज भी करेंगे, साफ सफाई रख रखाव नहीं होगा। जब आप कहेंगे कि ये हम सब लोगों ने मिलकर बनाया, अब ये आपका है, इसको चलाना, इसको बनाना, इसको मेंटेन करना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर प्रॉपर्टी। हमसे क्या चीज आपको चाहिए, मदद क्या चाहिए वो बताइएगा, हम जरूर आपकी मदद करेंगे, लेकिन चीज आपकी है। ओनरशिप जब आप कम्युनिटी को दोगे तो वो उस चीज को पॉजिटिवली, मैं जाके बोलूंगा कि अरे मैंने टॉयलेट बनाया है, सब ठीक ठाक है या नहीं है, ये है या वो है, बोले तुम्हारे टॉयलेट में तो हम, है ना, समझ रहे हो मेरी बात। ओनरशिप किसको देनी है, स्टेक होल्डर्स। मॉडल ऐसा बना, अर्निंग, क्योंकि देखो एक सीधी सी बात है, सोशल वेंचर में जब भी होती है अर्निंग जो है वो मिशन पे ही लगती है। एक चीज याद रखिएगा, सोशल मिशन का मतलब ये नहीं है कि जो सीईओ नॉर्मल कंपनी के होते हैं और सोशल कंपनी के होते हैं उनमें ऐसा कोई खास फर्क नहीं होता है। सोशल कंपनी के सीईओ भी प्रॉपर बिजनेस क्लास में भी ट्रेवल करते हैं, बस पावर होनी चाहिए आपके मॉडल में। सोशल जो मॉडल वाले जो लोग हैं वो भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लोग हैं। सुलभ शौचालय, वी ऑल यूजर ऑफ सुलभ शौचालय, इंटरनेशनल ब्रांड है। बिंदेश्वर पाठक, उन्होंने जब वो बनाया, ऐसा नहीं है कि बिंदेश्वर पाठक जो है ना वो मतलब अच्छा खासा इंटरनेशनल एक्सपोजर था उनका। तो पॉइंट हियर इज, ये नहीं है कि सोशल बोलते ही हम समझोगे कि भैया बाकियों से कम है, बाकियों से कतई कम नहीं है। नाउ द आउटरीच, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हेन यू आर डेवलपिंग, क्रिएटिंग एनीथिंग फॉर योर कम्युनिटी, आपका आउटरीच प्रोग्राम कैसा होगा, दैट शुड बी क्लियर। कम्युनिकेशन कैसे करना है, मैंने कहा ना कि हम बोलेंगे, हमारा बोलेंगे, आपका बोलेंगे, ये आउटरीच का तरीका है। आप उनको कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, आप उनको कैसे अप्रोच कर रहे हो, कैसे उनको समझा रहे हो, किस मेथड से आप बता रहे हो, किस तरह से उनको इन्वॉल्व कर रहे हो, दैट शुड बी क्लियर। लास्ट इसी में, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट, आउटफ्लो। अपने को पता होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्टिंग कितनी है, कब कब किस किस स्टेज पे कितने कितने पैसे खर्च करने हैं। सोशल प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, बहुत बड़ा, करोड़ों का बजट था, सारे पैसे आधे में लगा दिया, आउटकम निकला ही नहीं। आउटफ्लो शुड ऑल्सो बी क्लियरली डिफाइंड कि कब कितना कहाँ कैसे पैसा हम इसका लगाएंगे। ये है कहानी। फिर आगे स्टोरी टेलिंग, मेजर एंड रिकॉर्ड द इंपैक्ट। रिकॉर्ड करते जाओ, मेजर करते जाओ और लोगों को कम्युनिकेट करते जाओ, बताना जरूरी है। आप अगर कोई सोशल इनोवेशन कर रहे हो, उसके लिए गवर्नमेंट फंड करती है, आपको रिकॉर्ड बनाकर रिपोर्ट के थ्रू गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि देखिए सर, आपने जो सपोर्ट अप्लाई किया था उसकी वजह से ये पॉजिटिव इंपैक्ट आया है। किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने आपको सपोर्ट किया है, उनको कम्युनिकेट करना जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई माई स्टोरी करके आप देखा होगा, स्टोरीज आती हैं वहाँ, लोग सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, पॉजिटिव स्टोरी शेयर करते हैं, इम्पैक्ट स्टोरी शेयर करते हैं, वो करना जरूरी है। दो चीजें होती हैं, ए, जिसने डोनेशन दिया है, जिसने पैसा दिया, उसको लगता है कि मेरा पैसा सही जगह इस्तेमाल हुआ। दूसरी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये कर सकता है तो मैं क्यों। इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट जब हम शेयर करेंगे तो लोगों के बीच में बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा और उस वजह से हमारा नाम, गुडविल जिसकी हम बात करते हैं, वो सारी चीजें अच्छे से होंगी। कुल मिला के आज हमने ये स्टोरी शेयर की। क्या किया कि आपको अगर सोशल इनोवेशन करना है तो आप या तो इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव कैपेबिलिटी डेवलप करोगे, या फिजिकल कैपेबिलिटी डेवलप करोगे, सोशल कैपेबिलिटीज डेवलप करोगे, इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल। ये साइन में से कोई भी करते हो, सारी कर लो तो बहुत अच्छा। एक आध भी अगर कोई करते हो तो आप क्या कर रहे हो, सोशल वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, और इसके रिजल्ट में आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, वो भी डेवलप होती है। और सोशल, जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, जब हम बात करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की, जब हम बात करते हैं, ये म्यूचुअल चीज। ये तो हमारे मतलब अगर हम देखेंगे तो कर भला अच्छा वो भला है ना, सुना है ना, जब आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका भला ऑटोमेटिकली, ये वही वाली बात है।
व्हेन यू नो डू गुड एंड हैव गुड वाली बात है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? हाँ हाँ मैं कर दूंगा, कोई इशू नहीं, शेयर कर दूंगा। एनी डाउट एनी क्वेश्चन, क्योंकि देखो मुझे तो 4:30 बजे तक रहना है। ये खत्म करने का मकसद मेरा ये है कि अगर किसी को मेरे से 1 to 1 कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी। अब मैं कर देता हूँ इसको बंद।